इंटरव्यू था, क्या था? हाँ हाँ मिस इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चन है ना ये? हाँ, पूरे इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए। ओके मिस, कौन से पोजीशन के लिए था ये? Like they are searching for data analyst actually. ओके Hmm. ओके ओके As a fresher. ओके, हाँ हाँ हाँ। Means I said them like I have 1+ experience. बोल के I mentioned them Okay. That's fine. No worries. because I'm not getting calls for the fresher. इसीलिए Okay, that's fine. That's perfectly fine. Don't worry. ऐसे 4-5 interview निकालो, then you will be able to answer every question. Okay. Okay. So what is the first question? What is difference between primary key and secondary key? Okay. yeah. So anybody, or you yourself can tell me what answer did you give? Bro, mine is totally wrong, bro. That's why I'm preparing seriously. That. Acha. Okay. So like you are waiting for some one, like you are waiting to miss one opportunity and then start preparing properly. No, ऐसा नहीं है. Like I'm starting for preparing, bro. ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा. Just kidding. Okay. No worries. But then ठीक है, एक दो बार झटका लगेगा तभी आदत पड़ेगी। हाँ, और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जब भी हम कोई भी नया चीज सीखते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली जब भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं, पहला इंटरव्यू डेफिनेटली बेकार ही जाता है। क्योंकि तो Actually it depends. I'll tell you Yeah. my experience. I have like चलो ठीक है, दो चीजें। जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, ठीक है, सो पता नहीं क्यों लाइक एक चीज मुझे मेरी पर्सनली अच्छी लगती है, दैट इज कि इफ आई नो समथिंग आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन कि उसको मेरे को अगर आपके सामने बोलना है, आपके सामने बोलूंगा, 50 साल के आदमी के सामने बोलना है, तो दैट इज वन थिंग कि हाँ भाई अगर मुझे आता है तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और एटलीस्ट किसी और के सामने, किसी के सामने भी बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो विद दिस एटीट्यूड आई वेंट इनटू इंटरव्यू, ठीक है, एंड मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू भी था इट वाज ऑफ टीसीएस कॉलेज प्लेसमेंट का था। सो आई डोंट नो बाकी लोगों ने कैसा दिया, I somehow converted that interview into a discussion, and then my first interview itself was cleared properly, and then I got placed. And not only that, I was the only one good to get placed in that company from my college. So like उस साल में टीसीएस बहुत कम रिक्रूट कर रही थी, तो मेरे कॉलेज से सिर्फ एक ही हुआ था, एंड देन बाकी लाइक पूल कैंपस था, तो बाकी कॉलेज से भी ज्यादा नहीं हुए थे, 10-10, 12-12, 15-15 ही हुए थे, बट स्टिल। सो my point here is कि इंटरव्यू इट इज नॉट लाइक कि आप फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे हो, सेकंड इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली जनरली ऐसी होता है कि स्टार्टिंग के 4-5 इंटरव्यू लोगों के क्लियर नहीं होते हैं, एंड जो लोगों के क्लियर हो जाते हैं तो उस जैसे मेरा था, तो लकीली मुझे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी काफी सिंपल थे। ओके, सो उसमें एक लक फैक्टर भी है, बट देन अगेन अगर आप वो लक फैक्टर पे निकाल दो, सो आई एज्यूम इफ यू आर सीरियस एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल, आप 2 या 3 इंटरव्यू के बाद यू विल स्टार्ट getting you start clearing all those interviews. Exactly. Yeah. Okay, so हाँ तो मैं लाइक बोल रहा था कि लाइक जब भी आप इंटरव्यू पे देते हो, सो इंटरव्यू को जस्ट डोंट टेक इट एज क्वेश्चन आंसर। आई ऑलवेज रिपीट दिस पॉइंट, interview is nothing, never like question answer round. It is more kind of a discussion. It is more like I want to understand what you know. So if you know some, like I have a question, right, I asked you a question, tell me whatever you know about that. Just don't go blindly, or like don't say anything bluntly, but then still try to speak something sensible. That should do enough. Okay, so yeah, coming back to the question, what is difference between primary key and secondary key? Come on. So this is SK Sashank, right? Yes, bro. Okay, so what is difference between primary key and secondary key or foreign key? Okay, primary key is a unique key actually. Okay, unique key. But what will happen if in a column, is it a unique key or unique column? Why do we use the word key? It's a unique column actually. Okay, so suppose if I have a column name, so by unique column you mean to say that it should be like the name of the column should be unique, or the name of the value should be unique? Value. So why did you say it is a unique column? Okay, just I'm trying to confuse you. Okay, my point is, देखो unique key क्यों बोलते हैं उसको? Why not unique row or unique values or unique something like that?
That's because देखो ऐसा होता है कि in क्या बोलते हैं in IT there is something called as key value pairs. ठीक है? So what it means is you have a key and you have some value assigned to it. Let me share my screen. देखो ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है. दिस इज नथिंग टू डू विद एसक्यूएल और पावर बीआई. जस्ट एक कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि लाइक कीवर्ड का मतलब क्या होता है जनरली. ठीक है? सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. ओके, आई हैव बॉट अ नोटपैड. लाइक एक पैड लिया है मैंने स्टेंसिल वाला, बट आई एम नॉट एबल टू यूज इट. इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा कि उसको कॉन्फ़िगर कर सकूं. चलो नो वरीज, आई विल शेयर दैट लेटर. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. ठीक है? जस्ट लाइक किस की वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है. सो suppose you say I have information about, let's say, Shanky. Who is Shanky? Shashank. He is my friend. Like I actually have a friend named Shashank, उसको हम लोग Shanky बोलते हैं. Okay, so there is something for Shanky. Okay, okay, so let's say I have a name for his, that is Shank. Okay, his age is 26 and let's say his location is, let's say, Mumbai. Is that clear? Suppose I have another person, that is, let's say Ria. Okay, so okay, so let's say her name is let's say Ria, obviously क्योंकि नाम भी वैसे ही है. ठीक है? So Ria and age is 25 and the location is let's say Pune. So my point is, देखो, now we have something called as key and value. Like my key is name, my value is Shashank. My key is age, my value is 26. My key is location, my value is Mumbai. So now you got what is meant by key. Getting my point? What I want to explain. So basically, key is like you are telling ki like what are the different attributes. Now attributes you don't know, so let it be. Just understand. Key is like what are the identifiers that you have. Okay, identifiers is a very common कि हाँ पे कोई भी चीज identify करनी है. So you have a key and you have the value. So you might have a same key, but the value will be different. Okay, so when you say unique key, so what it means is that for this particular key, all the values should be unique, and that is why it is called as unique key. Okay, is this clear? Yeah. Okay, so now, so what is the difference between primary key and secondary key? So primary key is unique. Okay, so did it, like, if you remember that we have also talked about the primary key should be unique and question mark Identification. and Identifier. no, and the uniqueness itself means it is the identifier, right? Yeah. So unique and question mark. Something like not. all. Yes, remember. So Yeah. if I have my primary key, I cannot leave a space, like I cannot leave some value there. I cannot miss out a row for that particular column. So I hope that is clear, right? And this we have discussed in detail. So okay, so first of all, what is primary key? It is unique and second part? Null. Not null. Not null. Okay, so yeah, continue your answer, Shashank. Bro, sorry, I guess connected now. Actually, my laptop switch off हो गया था. Still, you can continue your answer. It is your Sorry. answer. It is your answer. Okay, my answer. Huh? Yeah. Okay, okay. Yeah, so difference between primary key and secondary key was that first of all it was a unique identifier, and the second part and second part is it cannot be null. Then what is secondary key? Secondary key. Secondary key is which is connected by the primary key, the primary table, to the secondary or foreign table. I got what you're trying to say, but the word you are using is not very
in line with your thoughts. Should I answer? Yeah, sure. Primary key is something like unique and not null, and which refers to the another table. That is, if there is master table, we have different. Suppose we are talking about the country. We have taken the country example last time. So there is a India, Australia, America. So there will be a primary table. Suppose 1, 2, 3, and that refers to the another table. That is transaction table. Will that may be repeated, but that refers to the primary, that first table, which is master table. Okay. So there is a link between, and that can be repetitive in transaction table. Yeah. Okay. See, since I know what is primary key and secondary key, I got your point. But I Yeah. want you to explain it in a even better way. Like कि किसी को भी like एक छोटे like एकदम छोटे बच्चे को नहीं, but अगर किसी first time किसी बंदे को समझा रहा हूँ तो कैसे समझाओ उसको? प्राइमरी की तो सबको आ रहा है। एक दो टेबल में अगर कुछ कनेक्शन करना है तो पहला एक ऐसा टेबल रहेगा जिसमें वो रिपीट नहीं होगा, यानी कि प्राइमरी की हो गया वो। और दूसरा जो टेबल है जिसके ट्रांजैक्शन है ना, उसका अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसमें कैसे रहेगा, तो वो रिपीट भी हो सकता है। अलग अलग बहुत सारे क्या हो सकते हैं? बट मतलब वही जो प्राइमरी की पहले टेबल में यूज किया वो अलग अलग ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं, बट जो ट्रांजैक्शन पहले टेबल में नहीं होगा उसकी एंट्री दूसरे टेबल में नहीं हो सकती। जैसे कंट्री आईडी सपोज 1 2 3 है, तो ये जो दूसरा वाला टेबल है उसमें भी अगर कंट्री आईडी यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसके अलावा नहीं हो सकता, यानी 2 3 1 2 3 के अलावा चौथा नहीं हो सकता, यानी पहले टेबल में वो होना चाहिए। Yes. मैंडेटरी। Yes. So basically the concept is, देखो प्राइमरी की ऐसा होता है कि आपके पास एक रो आइडेंटिफायर है। प्राइमरी की इज एज गुड एज सिंपली एक रो आइडेंटिफायर विच विल आइडेंटिफाई ईच रो यूनिकली। सिंपल सा स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट है। Yes. Primary key is a column which it can be column or combination of columns as well. Okay, so just to be simple, it is a column which identifies each row uniquely. Okay. And the second part, what is secondary key? Simply, secondary key in a table are used to refer to a primary key for joins. Okay, is that clear? Yes. Okay, so like as a simple answers को, so it will be, you will be able to explain the terms, like अगर आपका understanding काफी simple language में है, मतलब once you got the complete concept, even though the concept can be complex, but then try to set that complete concept into simpler words, and then when you are going for an interview उसको पहले एक simple terms में बता दो, and then ask him, sir आपको और detail में जानना है, like do you want me to be more specific or more technical in terms? So like इसमें कैसा होता है पता है, आप एक क्वेश्चन पे if you have a very good answer you can take more time, you can consume more time, right? And you can like जैसा मैं बोलता हूँ, it will not be any more simple question answer. So उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, you gave a simple answer, and now you are questioning him back कि do you want some more details on this? I can explain you. Okay, किसी के साथ ऐसा हुआ कि कभी आप इंटरव्यू में कुछ आंसर दे रहे हो and then बीच में रोक दिया उसने? Yeah, it can be happen. है ना, होता है ऐसा। Yeah. उसके लिए उसका अवॉइड करने का मेरे को पर्सनली बेस्ट तरीका ये लगता है कि यू स्टार्ट विद अ सिंपल आंसर, कि दिस इज द सिंपल आंसर, लेट मी नो इफ यू वांट मोर डिटेल्स ऑन दिस। ओके, सो लाइक होता कैसा कि जैसे कुछ आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट देन जनरली लोग क्या करते हैं, पता नहीं क्यों लोग करते हैं, लोग थोड़ा सा लंबा आंसर देना स्टार्ट करते हैं, लाइक एग्जांपल्स के साथ। देखो अगर मैं टेक्निकल बंदा हूँ, टेक्निकल इंटरव्यू है, ठीक है, सो माय फर्स्ट अप्रोच शुड बी कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ टेक्निकल आंसर डायरेक्टली, स्ट्रेट 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर जो भी है, but then there might be a possibility कि I want to understand the use case of it, then I want you to explain me further, right? कि primary की example आपने बोल दिया primary क्या है, secondary की क्या है, now explain me with an example. okay, ऐसा, and then अगर कुछ ऐसी है जो आपको technically आप explain नहीं कर पाए, then directly ask him, sir I'm not able to explain it directly, okay, in technical terms, can I go with the example? So ऐसा like बोल देना कि like I know this concept, I have used this concept, but I'm not able to frame that answer in a very technical way, so can I explain you in a very with an example? So that way again you are questioning back to the interview, and then it is becoming more like a interaction. okay, चलो ठीक है, ये हो गया प्राइमरी की, सेकेंडरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था?
what is okay था? Yes. Next question was How to match two tables? How we'll match? Yeah. How can we match two tables at a time? कैसे मैच कर सकते हैं दो टेबल को? help of inner join. लेट्स से देखो ये तो वो हो गया ना कि लाइक हाँ मुझे पता है इनर जॉइन एक वर्ड हो गया, बट देन थोड़ा सा लाइक एक्सप्लेन करने की कोशिश करो लाइक ठीक है मतलब यूजिंग जॉइन, सी द फर्स्ट आंसर इज यूजिंग जॉइन, बट ऑब्वियसली देखो इतना भी छोटा आंसर नहीं होना चाहिए लाइक यू जस्ट इनर जॉइंस. ओके सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि देखो ये आंसर एक आंसर ये हो एक आंसर ये होगा ठीक है कि फॉर टू जॉइन द टू टेबल्स वी विल गो विद द जॉइंट्स, राइट? बट देन अगेन अगला क्वेश्चन आ सकता है, देखो अगला क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड है कि आप कैसे करो, ठीक है? सो जस्ट टेल देम कि एक बेटर आंसर कुड बी फॉर दिस कि इफ आई हैव टू टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दैट टेबल. ठीक है, मैं आपको टेबल दे रहा हूँ, सो डायरेक्टली आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, राइट? पहले आपको पता होना चाहिए कि डू दोस टेबल्स हैव समथिंग इन कॉमन. if they have something in common, I'll try to see what kind of like common वो common कैसा है, like ऐसा तो नहीं है कि दोनों में जैसे एक में प्राइमरी की है एंड एक सेकेंडरी, ऐसा तो नहीं कि दोनों में ही प्राइमरी की वगैरह कुछ है या फिर दोनों में काइंड ऑफ रिपीटेड वैल्यूज वगैरह है. तो रिपीटेड वैल्यूज वगैरह है तो अगेन मेरे को डिफिकल्टी होगी ज्वाइन करने में, राइट? बट फिर मेरे को देखना पड़ेगा लाइक वो ज्वाइन कैसा है. मैं ये जो अभी बोल रहा हूँ ना इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी. सो मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा. जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कैसे जोड़ना है. तो मतलब पहले मैं देखूंगा कि कुछ कॉमन है, सेकंड पॉइंट इज मुझे इसको कैसे कंबाइन करना है, ठीक है? और एल्स यू कैन से मेरे को देखना है कि किस टाइप से कंबाइन करना है. लाइक डू आई वांट लाइक I'll go back and check the use case and do I want the right join, left join, inner join and so on. But then basically like depending upon that I will make a join. Okay, so the answer could be first of all I'll see what is the common between two table and then I'll go for the requirement कि किस टाइप का requirement है, किस टाइप का information चाहिए, and then accordingly I'll use the correct type of join. ठीक है? So what will happen with this answer is that you are not just telling that to join a table you need to use the join operator. You are also telling that जब भी मुझे कोई काम मिलता है आई फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हाँ भाई वो डेटा में क्या है या फिर टेबल में क्या है. आई डोंट डू थिंग्स डायरेक्टली और ब्लाइंडली, ठीक है? मैं पहले डेटा को स्टडी करूंगा, मतलब सिंपल से टेबल स्टडी करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि हाँ भाई उसमें किस टाइप का जॉइन का जरूरत है, ठीक है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं ना कि जॉइन है तो किसी भी तरह का. सो यू आर ऑल्सो टेलिंग दैट कि मुझे ये भी पता है कि कहाँ पे कितने टाइप्स के जॉइन होते हैं, और जब मैं जॉइंस यूज करता हूँ तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ब्लाइंडली inner join I try to see की requirement क्या है and then I create a join. So you are telling you are stating 3 or 4 statements with your answer. Getting my point? What is the difference between like going just like still try to keep the answer short, but then it should not be that कि हाँ भाई आप कुछ information miss कर रहे हो. Okay? Yeah. शशांक समझ रहे हो? शशांक, yes bro. करीम, हाँ भाई. हाँ भाई. Okay. Okay. And क्या नाम है? शुभम. Yes. Yes. Next question. what is the difference between SQL and MySQL actually? अब SQL और MySQL में डिफरेंस क्या है बताओ? हाँ बताओ, क्या बताया आपने? No, I said it full form actually. क्या? I told him like SQL is a structured query language, MySQL is a Microsoft structured query language करके बोल दिया मैं इसको. इसीलिए मार खाओगे. तो कंपनी वाले बैन कर देंगे आपको ऐसे आंसर देगा. MySQL versus SQL. No bro. ये तो भगा I देंगे was उन trying लोग. to answer him. I was totally blank. Actually, he was asking. He was starting shooting all the questions. I was totally blank. So Shashank, have you given any interview recently? yes. He's coming. On Friday. These interviews Friday. are coming from interview. So on Power BI or no? Like I went as a 1 year of experience for data analyst. It's a startup company actually. So is it for database or for what? Profile? Yes, What sir. profile? Business analyst. Data analyst. Oh. Data analyst. Okay. You can also refer us, sir. हाँ हाँ. मतलब ऐसा करो, एक अपना इंटरव्यू दे दो, अगर नहीं आपको लगता है कि लाइक मेरा नहीं हो पा रहा तो दूसरे को फॉरवर्ड कर दो.
Sure, sure, I'll do that. I'll keep in group also. Okay. Yeah, actually, today I have given Bales interview and I have cracked that. Great. So, as a database developer, but I don't want to join it. Join us. Bro, what was the package, bro? Bro, It's a don't package. see. I'll tell you before getting that answer. I'll tell you. First of all, initially 2 to 3 years ना आप पैकेज में मत जाओ. Even if you're getting a good profile with a low package, let's say एक पैकेज है जहाँ पे आपको 8-6 लाख का जॉब मिल रहा है, बट देन वहाँ पे सिर्फ आपको एक्सेल पे काम करना है. एक जगह पे आपको पावर बीआई, डेटाबेस, जावा, पाइथन सब कम मांग रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको 3.5 लाख रुपए दे रहे हैं. सो गो फॉर दैट 3.5 लाख रुपए इनिशियली, एंड देन मेरी बात मानो 2 साल बाद आप स्विच मारोगे ना, सो वो 6 लाख वाला बंदा भी 9 लाख पे स्विच मारेगा और आप 3 लाख से भी 10 लाख पे 11 लाख पे स्विच मार सकते हो. Exactly. Depends So upon- I directly want to go on Power BI instead of database. Yes. So can you guys see my screen? No, bro. No? No, no. So इससे पहले जब मैं वर्ड टेक्स्ट फाइल शेयर किया था तो किसी ने देखा नहीं? यस यस तभी Yeah, आया yeah. था. That time it was visible. Yeah, now it's visible. अच्छा, एसक्यूएल क्या होता है? हमने पूरा का पूरा एक हफ्ता वेस्ट कर दिया एसक्यूएल पे. एक्चुअली वेस्ट नहीं किया बट सीखा. सो माय पॉइंट इज एसक्यूएल क्या होता है? SQL is a server. नहीं गलत. एसक्यूएल इज अ Structured query language. कॉन्सेप्ट. एसक्यूएल इज अ कॉन्सेप्ट SQL एक- सिंपली. याद है देखो मैंने पहला स्टेटमेंट बताया था. एसक्यूएल इज नॉट एन टेक्नोलॉजी और टूल, इट इज जस्ट एन कॉन्सेप्ट. कि वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे पास कुछ कर सकते हैं हम. दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. मतलब क्या, हम डेटा को इस तरीके से स्टोर करेंगे कि हमारा डेटा काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से सेव हो. ठीक है, जैसे टेबलर फॉर्मेट हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, राइट. हमने बोला है कि ये कॉलम इस टाइप का होगा, ये कॉलम इस टाइप का होगा, राइट. सो वी हैव डिफाइन अ वेरी very very good structure, and then we are trying to store data in that, and then using the structure and some query language we are going to retrieve that data. So whatever we are doing with the data, that is in a very structured format. That is why it is called as SQL. S stand for structured, Q stand for query because we are obviously going to make some query on that, and then L stand for just language कि हाँ भाई वो like वो सब करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, तो that is language. I hope it is clear now, right? मैंने ये शायद पहले भी बहुत ऐसे जोश में पढ़ा था मैंने, याद है? Yes. So just remember, SQL is nothing, just an concept, or you can say it is a language which is used for handling structured data. What is MySQL? MySQL is a database technology. जैसे कि हमारे पास MS SQL है, that is provided by Microsoft. Similarly, we have MySQL. Similarly, we have Oracle, similarly we have Postgres. ऐसे बहुत सारे हैं, but then जैसे वो सब क्या है, वो सब tools हैं और ये एक concept है. Okay? Got the answer? Yes. Yeah, Ashish. Okay. Now next question. He asked me like what queries you guys will work on. He asked me the questions actually. So okay, what kind of queries will we be working on as an analyst? Most of the time we use select Yes, data query language. data. DQL, that is data Okay. query language, right? Most of the time we'll be going with the select statement and all those things only. Yeah. Okay, we know we should have an understanding of how the other query also works, but then most of the time we are simply going to use the DQL part of the SQL. That stands for simply data pulling part, or if you want to go into more statement wise, it is going to be select queries. Okay. Got the answer? Yes. So yeah. Now next question. So one more question. Yeah. सर ये नो एसक्यूएल वाला कॉन्सेप्ट क्या है? नो एसक्यूएल, देखो अभी डेटा आपके पास स्ट्रक्चर्ड है, हमने उसके लिए तो 10-12 डेटाबेस बना दिए. हाँ. What happen if I cannot save my data in the structured format? For example, let's say we have something called as let me notepad में एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कि कैसा दिखेगा. ये बंद करता हूँ अभी. ग्रेट, नोटपैड. ठीक है,
सपोज आई हैव वन डेटा, एक बंदा है जिसके पास मेरे पास जिसकी इंफॉर्मेशन ऐसे मान लो आपका ले लो भाई इमरान, ठीक है, आई होप स्पेलिंग इज राइट, ठीक है, नेम इज इमरान, ओके, एज इज लेट्स से 26, okay, let's say married, okay, married, 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 and let's say location Pune, okay, and let's say hobby is sports, okay. एक और बंदा आता है, let's say आपका नाम क्या है, सॉरी, शशांक, शशांक, okay, Shanky, okay, so Shanks is an also an anime character, anime if anybody wants, कोई देखता है anime, जान दो, okay, Shanky, and his age is let's say 29, okay, and let's say he's not married, he's in relationship, okay, and let's say he stays in Mumbai, okay, and he has sports, मतलब उसका hobby sports है, and he is a let's say pro cyclist, cyclist कुछ होता है, okay, cyclist. माय पॉइंट इज अगर मेरे पास ऐसे ऐसे देखो, ऐसे मेरे पास 10 कॉलम है, ठीक है, ऐसे 10 वैल्यू मेरे पास, ठीक है, ऐसे 10 रोज है, ठीक है, 10 लोगों की इन्फॉर्मेशन है, बट देन एक बंदे की इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें इन्फॉर्मेशन कुछ अलग है, ठीक है, अगले बंदे की इन्फॉर्मेशन आती है उसमें कुछ कुछ कॉमन है बट कुछ कुछ चीजें नहीं है, कुछ कुछ चीजें अलग है, मतलब अलग अलग लोगों का मेरा जो इन्फॉर्मेशन है दैट कैन बी डिफरेंट, राइट, or else the number of values that I am getting, or maybe just इसका मैं बोलता हूँ इसका मुझे relationship, इसका मुझे status नहीं मिल रहा, like I'll say I'm not getting his status, maybe I'm getting some other information about him. Similarly if I will have a third person जिसका मुझे let's say age नहीं मिल रही, I'm getting some other information, maybe just name and dancing style, okay. So my point is देखो जब ऐसा होगा ना कि आपके पास जो हमने बोला ना, हमने की वैल्यू पेयर के बारे में बात किया, राइट, रिमेंबर स्टार्टिंग में हमने की वैल्यू पेयर के बारे में, सो वेयर माय की इज कीप ऑन चेंजिंग, राइट, so if I have defined the key here, okay, here, so obviously like in SQL the key is same as column name, so let's say my key is name, okay, age, okay, status, okay, location and habit, okay, but then for this the key is changing, right, here we don't have the key for the status, so one way is to have a blank value, right, so आप बोलोगे ठीक है इसके लिए blank रख दो और यहाँ पे सबके लिए blank रख दो थर्ड पार्ट में, right, but then suppose यहाँ पे मेरा एक की चेंज हुआ, so I can introduce one or two new columns. What if my key is changing drastically, right, मे बी लेट्स से किसी के लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी के लिए कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट, सो ऐसे मान लो ऐसे मेरे पास 50 टाइप की इन्फॉर्मेशन है, किसी के लिए सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी के लिए लास्ट की 2 आ रही है, किसी के लिए बीच की 3 आ रही है, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज जो आपका डेटा टेबल वाला फॉर्मेट है उसमें बहुत सारी जगह पे ब्लैंक रहेंगे, कहीं पे कुछ वैल्यू आ रहा है, कहीं पे कुछ वैल्यू आ रहा है, सो इवन इफ आई ट्राई टू स्टोर दैट, ठीक है, और कल को कोई एक नया इंफॉर्मेशन आ गया किसी के बारे में, तो फिर से एक पूरा का पूरा नया क्या बोलते हैं नया कॉलम क्रिएट करना, ठीक है, 3-4 आ गए तो 4-5 कॉलम क्रिएट करना, देखो टेबल का साइज देख रहे हो कितना हो रहा है, सो इस केस में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग इट लाइक दिस व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्टार्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच पर्सन, ठीक है, देखिए थोड़ा सिलेबस के बाहर जा रहा है, इसके लिए सब लोग 100 रुपए बाद में को पे कर देना सेपरेटली, okay. So let's say we have person, okay, so we have some let's say we have name, so let's say this time, okay, let's say person, okay, and let's say we will have the keys as name, okay, name and some value, okay, key value, age, okay, so suppose let's say I have person 1, ठीक है, so उसका मुझे name और age मिला, I'm good to go, I'll just save this, okay. Second one person है person 2, okay, so let's say I have let's say name and gender, okay, name, okay, name and
जेंडर, ओके। थर्ड पर्सन है, पर्सन 3, उसका मुझे कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिलता है। लेट्स से स्कूल, कौन से स्कूल में गया है वो, और लेट्स से सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे जो ऐसा कुछ मेरा कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है टेबल का, डेटा का, राइट। सो if now even if I want to save the non-structured data, I can still do it because I'm here itself I'm defining the key as well as the value. So for each value I am defining some key. So this can be common or this can be completely different one. So that way I'm handling some data that is non-structured. So that is what we called as NoSQL. Okay, so NoSQL stand for यहाँ पे कहीं पे दिखेगा तो non-SQL, non-relation in the database. Okay, ठीक है। So definition कहीं से उठा लेना यार बात, I don't know this website पे proper definition. So basically जो MongoDB था, that is for this only. Remember I told you something about MongoDB का database. So जब SQL का बात करता हूँ तो I don't take this name. Because Are we talking about NoSQL? yes. Why it is so? Why it is so mean? Actually, it is apart from our topic. Yeah, that is why I told na, you guys can pay me 100 rupees extra. Okay, no issue. No issue. So just call the management and अपने PTM से 100 रुपए extra. मैनेजमेंट में आपके भाई है ना भाई? Still नहीं 3-4 लोग बैठते हैं bro. Mostly भाई आपके भाई है ना शायद? पावर BI पे एक चीज के बारे में बड़े भाई लेते हैं और बाकी सब चीजों के बारे में और भी लोग. अच्छा, no issue. ठीक है. Still you can make that contribution. Thank you so much guys. Sure. We will definitely make our. Bro, I have a doubt. देखो. हाँ, sure. If it is a NoSQL ना, it's not in structure format. So where we use this NoSQL actually? कहाँ use करते? नहीं, what is the purpose of NoSQL actually? So जहाँ पे SQL आपका फेल हो जाए वहाँ आपका SQL NoSQL आ जाएगा. जैसे मैंने बोला ना अभी तो पता है यार आधे घंटे से वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब आपके पास information is not in a very defined format. For example, you are writing and let's say I have a simple question. Tell me something about yourself. So now I want to store those answers in some database. Okay. Now you can give me a 2-liner, right? Just my name is so and so and my age is so and so. बस खत्म. बाकी टाइम मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया. Okay. Similarly, there is a guy who can keep on telling about himself. Like वो 15-20 चीजें बता चुका है. So how do I store these two data in the same table? Is it possible? Because for you, अगर मैं आपके हिसाब से टेबल क्रिएट करूं तो it will have only 2 columns. अगर मैं उसके हिसाब से क्रिएट करूं तो it will have approximately 50 columns. ऐसा कोई बंदा आता है जिसको सिर्फ 10 प्रॉपर्टी पता है तो उसके लिए मेरे को एक 15 कॉलम चाहिए. बट देन हाउ डू आई डिफाइन एग्जैक्टली कि कितने कॉलम चाहिए, राइट? और आप जो बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन में भी जो दूसरा वाला बंदा है उसने एकदम ही अलग इन्फॉर्मेशन बताई, तो आई विल एंड अप विद 52 कॉलम्स प्लस 15 कॉलम अलग से आ गया तो 52 प्लस 15 67 कॉलम्स. सो मुझे कुछ पता ही नहीं कि मेरा स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, राइट? आई कैन नॉट डिफाइन इट इनिशियली. ठीक है. सो ये सब चीजों के लिए विल गो फॉर NoSQL. Okay, but bro, we run that NoSQL, bro. We'll run that query also. Yes, we do run queries. वरना आप डेटा पुल कैसे करोगे? So can you please show me once, bro, please? I don't have NoSQL data in my laptop. अच्छा, okay. Okay, but then उसका ऐसा होता है where key, तो where key is equal to so and so, where key is equal to so and so, something like that. Okay. So no, bro, the NoSQL will get in SQL only, it will be no. See, no SQL queries, no SQL queries. इसलिए मैं बोलता हूँ एक टाइम पे एक चीज. ठीक है, चलो ठीक है. No SQL queries. Let me see images में कुछ क्वेरी दिख जाए तो see you see insert current time कैसे insert कर रहे हैं. Let's say this is the format, इसको JSON format बोलते हैं. This is how it is going to be stored.
ओके बैक एंड पे क्वेरीज 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 क्वेरीज, ये देखो नहीं है तो शॉर्ट इमेज अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। ये कौन सा है, ये तो वही है, सिंपल क्वेरी है तो maybe I'll get some queries for you and मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा उस पे, ठीक है। ये रहा, let's see कुछ do you have something here where you can compare these two। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है queries कैसे, select something 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 something, कुछ conditions from वगैरह वगैरह वगैरह, which where clause, ठीक है। so selecting column goes into key values pair, selecting where clause goes into filters। okay, so filter में key value, key value, something like this। okay, so like obviously देख के confuse हो जाओगे, but then still just understand कि like there is a completely different structure for that। okay, भैया ये आता नो एसक्यूएल भी अपन को no SQL अपने प्रोफाइल में? no SQL actually अभी भी इतना लाइक इतना हम लोग आगे नहीं बढ़े कि हमें हर कंपनी नो एसक्यूएल पे जंप कर रही है, अभी भी मोस्टली कंपनी एसक्यूएल पे ही है। बट देन ऑब्वियसली जैसे जैसे आप प्रोफाइल में आगे बढ़ोगे देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करोगे जहाँ पे आपको नो एसक्यूएल यूज करना पड़ेगा। ओके सो अभी के लिए इंटरव्यू में नेवर टेल कि आपको नो एसक्यूएल के बारे में पता है। ओके चलो, सो आई होप दिस इज गुड। व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Did somebody left? Yes, Shashank left. Okay, what is the next question? Shashank ही नहीं है तो क्या next question? Okay, so let's go into final Power BI। Wait, can you guys see my screen? Hello? Yes, अच्छे से। Okay, so let's see what is Power BI first of all। So if you will search about what is Power BI, okay, so let's first understand, before entering into this I want you guys to have some clear picture about what is data science, what is AI, and what is machine learning। okay, so if you will just see, if you will search about, let's say data science, okay, data science versus क्या बोलते हैं machine learning, okay, versus AI, okay, so you will mostly see a graph something like, let's say this one, okay, or maybe something like this one। so these kinds of graph you will get। my point is, it is not that these three things are completely different। okay, so overall we have something called as data science, which is the let's say universe of this data। okay, so एक universe है आपके पास, and then that complete universe you called it as data science। okay, if anybody remember 12th class maths, इसको बोलते हैं universal set। so data science is your universal set, so everything that you do with the data comes into data science। so suppose even if you are playing with data in Excel, it is also a part of data science। if you are even making a simple calculations, it can again be a data science। okay, so data science में सब कुछ आता है, but then data science के अंदर एक particular stream है जिसको हम लोग बोलते हैं AI। AI मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उनमें से कुछ चीजों को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एंड उसके अंदर कुछ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग। सो बेसिकली आइडिया इज कि डेटा साइंस इज द वेरी बिग पिक्चर, उसमें बहुत कुछ आता है। तो उसी के अंदर आपका AI भी आता है, उसी के अंदर आपका मशीन लर्निंग भी आता है, उसी के अंदर आपका डीप लर्निंग भी आता है। ओके, सो जस्ट इन केस, मतलब जनरली थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखा देते हैं लोग, ठीक है, कि आपके पास डेटा साइंस का इन लोगों ने अलग दिखाया, बट देन वो कम लाइक रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, बट जनरली आप देखोगे सो डेटा साइंस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ इट मोस्टली। ठीक है, सो डेटा साइंस इज यू कैन से एनालिटिक्स के डोमेन में दैट इज द एंट्री पॉइंट फॉर डीपर कॉन्सेप्ट्स। okay, now what is difference between data science and business analyst? okay, so data science अगर आप सर्च भी मारोगे, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट
versus business or maybe let's say data analyst. See, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप समझो कि आप करना क्या चाह रहे हो लाइफ में. Okay, so if you see there are some differences. Okay, so okay, there are different role, but then okay, let me see if I have a good image. Okay, so ऐसा समझो कि डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. सो इट कैन बी स्टोरिंग ऑफ डेटा, इट कैन बी क्लीनिंग ऑफ डेटा, मिनिमाइजिंग द memory for storage. Okay, and then while reading, optimizing the queries and all those things. Okay, maybe changing the data format for better understanding of the data, like डेट वगैरह है तो उनके फॉर्मेट वगैरह चेंज करना, जो डेटा स्टोर कर रहे हैं उसका डेटा वगैरह फॉर्मेट वगैरह चेंज करना. ठीक है, मे बी जो चीज़ें नहीं इन्फॉर्म, जो चीज़ें आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है उनको स्टोर, लाइक इनिशियल लेवल पे, मतलब मैक्सिमम इनिशियल लेवल पे ही उन सबको सेग्रीगेट कर देना, फिल्टर आउट कर देना. तो ये सब काम बहुत कुछ होता है. एंड उसके बाद फिर उस डेटा में से कुछ इंसाइट्स निकालना, मॉडल्स क्रिएट करना, उस मॉडल को रन करना, फिर उससे कुछ और नए इंसाइट्स निकालना. सो ये सब काम होता है डेटा एनालिस्ट का. ठीक है, कितना क्लियर है? Yes. ओके, अब इतना ये पूरा काम हो गया, ये हो गया डेटा एनालिस्ट, इसको साइड में रखो. अब एक होता है बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है कि मुझे कोई बिजनेस करना है एंड आई नो कि हाँ भाई उस बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. लेट्स से हमारे पास एक मॉल है एंड आई वांट टू इंक्रीज द सेल्स. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्केट. पहले तो मैं देखूंगा कि लाइक बाजू के दुकान वाले क्या कर रहे हैं, जस्ट समझने की कोशिश करूंगा. अच्छा, उसने सुबह शाम से लेके दोपहर तक खोला है, अच्छा मैं भी ये काम करता हूँ, सुबह से लेके दोपहर तक ही खोलूंगा, शाम को बंद कर दूंगा, शाम को मैं कुछ और काम कर लूंगा जो कि मुझे अगले दिन दुकान खोलने के लिए जरूरत पड़ेगी. और मे बी लेट्स से अच्छा उसने 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 नई वाली जीन्स लाई, नए वाले स्टाइल की जीन्स लाई है, मैं भी नए वाले स्टाइल की जीन्स ला के रख लूंगा अपनी दुकान. उसने, मैं देख रहा हूँ उसने अपनी दुकान में केक वाली चीजें ज्यादा रखी है, लाइक उसने क्रीम वाले बिस्किट ज्यादा रखे हैं, तो मैं भी अपनी दुकान में क्रीम वाले बिस्किट ज्यादा रख लूंगा. राइट, सो ये एक तरीका क्या होगा, मैं बिजनेस ऐसे ही लाइक बिना किसी चीज के बस अपनी आंखों से देख के, लाइक अपने सेंसेस यूज करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, बट देन इसमें कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ भाई इसमें हो सकता है मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस आउट कर दूं. राइट, फॉर एग्जांपल मैंने उसको सुबह से शाम तक देखा, ठीक है, बट उसकी दुकान में सेल्स कैसा हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, फिर मेरी दुकान में कैसे कस्टमर आ रहे हैं, कि किस एज ग्रुप के आ रहे हैं, ठीक है, ये सब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से हाँ, सेकंड पार्ट जो होता था ये था कि मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि हाँ भाई, मतलब मुझे कुछ श्योरिटी से नहीं पता. वो जब मुझे दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने उसको 1 घंटा देखा, तो 1 घंटे में उसके बाद बहुत भीड़ आ रही थी, एंड देन जैसे ही मैं हट गया तो वहां पे शायद पूरी भीड़ गायब हो गई, बट मेरे को पता ही नहीं चला उस चीज के बारे में. ठीक है, सो डेटा मिस हो रहा है, प्लस मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, या फिर कोई शॉर्ट क्या बोलते हैं, एक प्रूफ नहीं है कि हाँ भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है. राइट, इसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो गाइस, हेलो. No, no. ओके, सो माय पॉइंट इज नाउ, नेक्स्ट से अगेन, फिर मैंने क्या किया, मैंने 1 महीना ट्राई किया, बट देन मेरा सेल्स अभी भी बढ़ा ही नहीं. सो व्हाट आई विल डू, मे बी कुछ बढ़ा होगा, बट देन आई वांट टू सी कि हाँ पे मैं और कैसे बढ़ा सकता हूँ. तो ठीक है, मैं उसका बिजनेस से देख के समझ गया. नाउ आई वांट टू गो इनटू डीपर कि हाँ भाई नहीं, मुझे सच में और इंक्रीज करना है, तो मैं कैसे करता हूँ. देन व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई मेरे दुकान में क्या हो रहा है. अब वो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, या तो मैं 24 घंटा बैठ के देखता रहूँ और एक बिंदा, अच्छा इसकी एज इतनी है, ये इतने बचेगा, इसकी एज इतनी है, इतने बचेगा, इसकी एज इतनी है, इतने बचेगा, इसने ये खरीदा, इसने वो किया, इसने वो किया, बहुत कुछ है. So instead of this, what I can do, I can store all that data in somewhere, and then I'll just use that data to analyze my business. ठीक है, अभी इसमें क्या होगा कि अगर मेरे को बिजनेस की, फर्स्ट ऑफ ऑल when I want to find these solutions for my business, I should have a very good understanding of my business, right? वरना मुझे क्या पता कि मुझे ढूंढना क्या है, right? That makes sense, right? अगर if I want to increase the sales of my Yes. particular business, I should have a very good understanding of business. Okay, so this is a very major difference between data analyst and the business analyst. Business analyst will have a very good understanding of business, and data analyst might not have a very good understanding of business. I'm saying might not have.
अगर कोई बंदा अपने आप को लाइक अपने आप को अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता है तो ऑब्वियसली वो भी बिजनेस के बारे में पता करेगा ही करेगा, ठीक है। जस्ट देन इट माइट बी दैट कि हाँ भाई डेटा एनालिस्ट को बिजनेस के बारे में पता ही नहीं हो। सिमिलरली अभी आप मेरे पास है, आपका आप लाइक मेरा बिजनेस है, मैं एक डेटा एनालिस्ट के पास जाता हूँ या फिर मैं एक ऐसे बंदे के पास जाता हूँ जहाँ जिसने डेटा स्टोर किया है, और या फिर मैं सिर्फ एक डेटाबेस के पास जाता हूँ। तो मैं एज अ बिजनेस पर्सन डेटाबेस में गया एंड डेटाबेस में मैंने इन्फॉर्मेशन देखना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मैं परेशान हो गया, यार ये कैसे रखा है इन्फॉर्मेशन, इसको ढंग से कौन रखेगा, इसको ढंग से कोई रखो ना, या फिर कोई मुझे सिर्फ इतना टेबल निकाल के दो ना, या फिर मुझे कोई सिर्फ इतने रोज निकाल के दो ना, कोई मुझे सिर्फ इतना डेटा फिल्टर आउट करके दो ना, कोई मुझे इस फॉर्मेट में करके दो ना, राइट। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं वो सारे काम खुद से कर लूं, but then since I am more engaged into business I cannot spend time on data part completely, ठीक है। मैं database का care take like taking care of the database and then maybe uh, making backups and all those things that is done that is to be done on the database side, I am not able to do it. Obviously data filtering वगैरह करने से अच्छा मैं कौन परेशान करे, इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, एक database बंदे को हायर कर लूंगा, उसको मैं बोलूंगा भाई उसको मैं रिक्वायरमेंट दूंगा, मुझे ये डेटा चाहिए, वो निकाल के दे देगा। So data analyst is more inclined towards the business, sorry, business analyst is more inclined towards the business and वो सिर्फ डेटा लेके आपको बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। एंड डेटा एनालिस्ट क्या करता है, वो क्या करता है, आपके पास वो पूरा मोस्टली आपका पूरा स्ट्रक्चर लाइक सब कुछ दिखाता है डेटा के बारे में, बट देन हो सकता है कि उसको एक बिजनेस पर्सन के साथ बैठना पड़े कि वो मतलब अभी से मेरे पास डेटा है, राइट, अब मैं इससे इन्फॉर्मेशन क्या निकाल के दूं, आपके लिए क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी। सो एज अ डेटा एनालिस्ट मुझे वो पता नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक बिजनेस पर्सन के पास जाऊंगा एंड देन मैं उससे पूछूंगा, बॉस बॉस आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे बताओ, I'll make something for you, क्लियर। सो डेटा एनालिस्ट इज लाइक वो डेटा के साइड से पूरा काम कर रहा है, बिजनेस एनालिस्ट इज मोर लाइक यहाँ पे वो ज्यादातर काम बिजनेस की तरफ से कर रहा है, ठीक है। obviously if you see there is some common region but then it is again like जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों एकदम ऐसा नहीं कि आप एक लाइन ड्रॉ करते हो कि नहीं इसके इधर बिजनेस एनालिस्ट इस लाइन के इधर नहीं आएगा या फिर डेटा एनालिस्ट इस लाइन के इधर नहीं जाएगा। इट इज जस्ट दैट किस बंदे को क्या नॉलेज है एंड वो किस बंदा किस डोमेन में ज्यादा काम कर रहा है, द प्रोफाइल विल चेंज। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes. सॉरी, Yes, yes. ओके ओके, हाँ चलो। सो आई होप ये सब लाइक ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, राइट। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट जॉब, लाइक जनरली होता क्या है कि कंपनीज हर जगह बिजनेस एनालिस्ट डालती है एंड डेटा एनालिस्ट की जो रोल निकलते हैं वो बहुत बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल कंपनी सबसे सब काम कराना चाहती है, तो वो चाहती है कि आप बिजनेस भी समझ लो जितना आपको काम पड़े और आप आंसर्स निकाल के दे दो। तो वो चाहती है कि एक ऐसा बंदा है जिसको थोड़ा बहुत बिजनेस की समझ हो और जिसको क्या बोलते हैं जो डेटा हैंडलिंग अच्छे से कर सके थोड़ा बहुत, एटलीस्ट काम चलाने भर का। इसलिए मैं बोलता हूँ जो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं ना, जैसे स्पेशली जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं एंड यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस एज वेल, क्योंकि जब आप फाइनेंस में बात करते हो, राइट, जब आप किसी कस्टमर से बात करते हो तो आप कस्टमर को पूरा समझते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कस्टमर को एक स्कीम सेल करनी है तो मैं कस्टमर को पूरी तरह समझता हूँ, लाइक कस्टमर का एज कितना है, फॉर एग्जाम्पल एक मुझे टर्म इंश्योरेंस बेचना है, सो आई लास्ट कि हाँ भाई कस्टमर क्या करता है, एज कितनी है, कितना कमाता है, राइट, कितने लाइक उसका हेल्थ इशू है कि नहीं है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है कि नहीं करता, राइट। सो मेरा अंडरस्टैंडिंग इस बिजनेस में काफी अच्छा है कि लाइक मुझे पता है कि हाँ भाई मुझे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तब मैं डिसीजन लूंगा। सिमिलरली आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, आपको पता है कि लोग लोन के लिए कैसे लोग ज्यादा आते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस का आइडिया है, ठीक है, और फिर अगर आप डेटा साइंस का थोड़ा सा पार्ट सीख लेते हो तो यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट कि हाँ भाई आप मेरी कंपनी के लिए काफी अच्छा एसेट बन जाते हो। इसलिए जैसे आप अगर सिविल बैकग्राउंड से आते हो तो अगर आप वापस से ऐसी कंपनी में अप्लाई करो जो कि सिविल डोमेन में एनालिसिस करती है तो यू हैव अ वेरी गुड एडवांटेज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। बट देन अगेन मोस्टली ऐसी कंपनीज काफी कम होती है, बट देन अगेन अगर आपको लग रहा, ट्राई टू सर्च आउट फॉर दोस कंपनीज एंड वहां पे आप अपना दोनों एक्सपीरियंस फुल एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है भले किसी भी डोमेन में, यू विल बी एबल टू शोकेस दैट। चलो, आई होप द बैकग्राउंड इज क्लियर, राइट, कि डेटा साइंस वगैरह क्या होता है, बिजनेस एनालिसिस क्या होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड में डेटा साइंस की जरूरत कैसे पड़ती है, एंड हाउ यू गाइस कैन स्टार्ट टू कोरिलेट data science with your current domain. Okay. So Ashish, my question is that actually I am from a database background.
हम्म, So can I be a techno-functional person? टेक्नो That is techno-functional. That is functional knowledge also, like financial domain, हाँ having a knowledge database. Yeah. ओके ओके सो वही मैं बोलूँ ना अभी से आपका भी डेटाबेस का अच्छा नॉलेज है राइट सो अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि राइट आप डेटाबेस के सारी क्वेरीज वगैरह हैंडल कर सकते हो आप एक उस लेवल पे हो जहाँ पे आप एकदम नई कंपनी के पास जाओ और आप उनसे ये समझो कि लाइक डेटाबेस में उनको क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है एंड देन गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑब्वियसली देखो टेबल वगैरह तो ठीक है आप बता दोगे बट देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट कि हाँ भाई देखो ये डेटाबेस बेस्ट होगा आपके लिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल MS SQL है पोस्टग्रेस है नो SQL है आप डिसाइड करो आपके पास इतना अंडरस्टैंडिंग हो आप बता सकते हो हाँ भाई ये डेटाबेस आपके लिए अच्छा है मार्केट में ये डेटाबेस इतना चीपर है ठीक है देखो और फिर आप ये बताओ कि हाँ भाई इस डेटाबेस में ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं इस डेटाबेस में ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो आप कौन से वाले सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो ठीक है अगर आप इस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है एंड देन आप ऑब्वियसली डेटा आप फिर आप क्या बोलते हैं बिजनेस यूज को समझते हो सो यू विल देखो इतना अगर आप कर लोगे ना इवन एज अ डेटा साइंस आपको एनालिस्ट में घुसने की जरूरत ही नहीं है सिर्फ डेटा डोमेन में सो आई एम अज्यूमिंग कि इस लेवल पे आपकी पेमेंट एटलीस्ट 15 lakhs के आसपास होगी 15 to 20 lakhs Okay. So should I approach? So you mean that I should approach the startups? आई नॉट सेइंग कि गो फॉर स्टार्टअप्स अब ऐसा नहीं है ना कि देखो अभी एक कंपनी है ठीक है तो ऐसा नहीं है ना कि कंपनी में नए डेटाबेस बनते नहीं है कंपनी के डेटाबेस चेंज होता ही रहता है डाउन द लाइन सो उन्हें एक ऐसा बंदा भी चाहिए जो उनका एक्सिस्टिंग डेटाबेस संभाल सके और उसको मॉडिफाई कर सके फॉर द बेटरमेंट सो वो सब चीज़ें भी कंपनी में चलती रहती हैं तो जरूरी नहीं कि आप एक स्टार्टअप कंपनी को अप्लाई करो जस्ट अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो यू कैन रीच आउट टू एनी कंपनी एंड अगर उसमें DBA की ओपनिंग होगी डेटा एनालिस्ट की ओपनिंग होगी तो यू कैन अप्रोच दैम Okay. Yeah. तो माय पॉइंट इज एट दिस पॉइंट अगर आपको लगता है कि आपको डेटाबेस में उतना इंटरेस्ट नहीं है कि आप उस लेवल पे जाके नॉलेज गेन करो सो आई वुड से ट्राई टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द SQL लाइक डेटा पार्ट कंप्लीटली डेटा स्टोरेज वगैरह सब कुछ डेटा लाइक बिग डेटा वगैरह का थोड़ा सा पढ़ लो ठीक है थोड़ा सा हडूप वगैरह के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ लो ठीक है उसके बाद फिर एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव वेरी लेस क्या बोलते हैं लेस एक्सपीरियंस इन पावर BI एज वेल देन आल्सो यू विल गेट द प्रोफाइल क्योंकि आप देखना अभी आप लोग इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे सो ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी डेटाबेस के बारे में आप क्या जानते हो या फिर SQL कितना आता है आपको या फिर आप डेटा कितना समझते हो हमेशा पॉइंटिंग वही स्टार्ट होता है क्यों क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ टूल्स आप मुश्किल से 2 महीने में सीख जाओगे 2-3 महीने में बट देन द थॉट प्रोसेस दैट कम्स विद एक्सपीरियंस वो चीज़ वो लोग देखना चाहते हैं चलो again let's not get into much of a lecture so I hope but the answers like questions are answered right is there anything around that right now guys okay No, bro. If I anything, then I'll reach out to you. sure so इतना हो गया we have covered all those things now let's see so हमने क्या बोला देखो ये सब जो हमने बोला था बिजनेस एनालिसिस डेटा एनालिसिस AI मशीन लर्निंग ये सब क्या है ये सब कॉन्सेप्ट्स है या फिर ऐसा बोलो ये सब टेक्नोलॉजीज है ठीक है बाय टेक्नोलॉजी आई डोंट मीन टूल्स अलग हो गई टेक्नोलॉजी अलग हुई ठीक है टूल इज लाइक कि ये देखो जैसे मुझे ओके जैसे मुझे पहले पहले ये समझो मेथड ठीक है मेथड टेक्नोलॉजी और टूल कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस और लेट्स से कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स इन सब में डिफरेंस क्या होता है जैसा डेटाबेस एक टेक्नोलॉजी हो गया और Data- टूल्स बोले तो जैसे जैसा अपना SSMS है या फिर दूसरे में जैसे MySQL एक अपना टेक्नोलॉजी हो गया यानी डेटाबेस हो गया यस उसको यूज करने के अलग अलग टूल्स होते हैं जैसे SSML एक मैंने एग्जांपल बताया दूसरे और भी टूल्स होंगे मार्केट तो में एग्जांपल हो सकते हैं एग्जैक्टली एनीबॉडी एल्स वांट टू ट्राई डिफरेंट एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम डेटाबेस जस्ट एक रियल वर्ड्स एग्जांपल समझो गाइस मैं बताऊं फिर से कोई नहीं बाकी लोग हाँ बोलो जैसे अभी जावा है तो जावा इज अ टेक्नोलॉजी
and we Mhm. can develop the code into edit plus or notepad or eclipse or any other tools or using a cmd also, the command prompt also. So Yes, these are the tools. yes. So basically डेटा, सो वैसे ही सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमें एक खेत में कुछ उगाना है, राइट? सो मेथड इज लाइक कि वी नो कि हाँ भाई, वो जो उगाने का प्रोसेस वी नो, कंप्लीट प्रोसेस की, लाइक बीज जमीन में जाना चाहिए, पानी वानी देना है, लास्ट में उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। टेक्नोलॉजी इज लाइक हमारे पास ट्रैक्टर्स आ गए, ठीक है, लाइक हमारे पास मोटर टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, मोटर्स आ गए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है। सो अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, ठीक है, मोटर्स हैं, इंजन्स हैं, टायर्स हैं, ठीक है, टूल्स लाइक वो क्या बोलते हैं, सेपरेट खोदने वाले टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कंबाइनिंग ऑल दोस, लाइक दैट इंजन टेक्नोलॉजी, टायर टेक्नोलॉजी, ठीक है, टायर, मोटे टायर्स होने चाहिए, ग्रिप ग्रिप उनका चेंज करना है, वो लाइक ये सब चीजें वी आर कंबाइनिंग इनटू अ प्रोडक्ट that is called as tractor. So now tractor is a tool that will help me in my agriculture processes. So tools, technologies and methods. Method remain the same, technology remain the same, tool might be changing, right? अगर मुझे like अगर मुझे कुछ sowing करना ही है, मतलब मुझे कुछ उगाना ही है, तो obviously I will always have to go with the same process. पहले जमीन तैयार करो, बीज बो, और then you can harvest that later. So my point is data. So throughout the course, whenever we are learning this Power BI, try to understand the method, not the tool completely. Method 100% आना चाहिए, and once you know कि आपको करना क्या है, you can easily find कि वो चीज़ कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुकान में कुछ सर्च करो, राइट, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको मार्केट में से चाहिए क्या, तो आप मार्केट में कहाँ जाके क्या ढूंढोगे? बट इफ यू आर श्योर कि मुझे मार्केट में यही सामान चाहिए एंड वो चीज़ इस कलर का या फिर इस साइज का या फिर इतने रुपीस का होना चाहिए, द मोर स्पेसिफिक यू आर, द बेटर और इजियर इट विल बी फॉर यू टू फाइंड अ करेक्ट शॉप, राइट? इतना तो सब लोग जानते हो ना? Yes. Yes. ओके ओके, सो लेट्स, तो जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट को हमेशा पे दिमाग पे रखना कि whenever you are learning something, what is the method behind that, या फिर what is the reason we are doing that, या फिर how that is going to solve a problem, instead of कि हाँ भाई कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा. Okay, so let's start with this. Okay, so the concept we have discussed, the method that I want you guys to follow throughout the course, that is also clear. And let's see what is Power BI. Okay, so देखो Power BI, ठीक है, turn data into a project, ठीक है, data Power BI is again a business analytical service, देखो service या फिर tool, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, बट देन जस्ट अंडरस्टैंड Power BI is again a tool for data analysis. I'll repeat, Power BI is a tool for data analysis. क्या आपके पास ऐसे और टूल्स हैं जो डेटा एनालाइज करने में हेल्प करते हैं? Yes, Yeah, we have. Oracle, no? Oracle सा? also. कौन सा? Oracle. ब्रैके? No, Oracle, Oracle. Oracle, Oracle, Oracle Then का Tableau. Can we Oracle, use Oracle Tableau is, as well? see, Oracle is not a tool, Oracle is a company, ठीक है. सो Oracle जब मैं डेटाबेस बोलता हूँ तो Oracle DB, उसका Oracle DB का कुछ नाम होता है उनका, Oracle DB डेटाबेस कुछ नाम होता है उनका, ठीक है. बट देन अगेन या Tableau Tableau एक है, ठीक है. सो Oracle का भी एक टूल है, आई रिमेम्बर बट आई फॉरगॉट द नेम. Oracle का भी एक टूल है. और सो इफ यू Google Data Studio बोल सकते. गूगल डेटा स्टूडियो, यस बोल सकते हो. ओके, सो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं. सो इफ यू सी, जस्ट यू कैन जस्ट सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव फॉर पावर बीआई. ओके, सो मे बी यू विल से सी यहाँ पे बहुत सारे टूल्स, राइट. जस्ट ये गार्टनर एक वेबसाइट है जो कि लाइक अलग अलग कंपनीज के परफॉर्मेंस को, प्रोडक्ट्स को कंपेयर करती है, उनको रेटिंग्स देती है, ठीक है. सो जस्ट सी, टैब्ल्यू है, क्विक सेंस है, सैप बिजनेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माइक्रो स्ट्रेटजी है, दिस इज अगेन अ वेरी एडवांस टूल. टिपको स्पॉटफायर है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, IBM वाला है, ठीक है. सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है. ओरेकल बिजनेस इंटरप्राइज तो BIEE, ठीक है. सो ये सब चीज़ें हैं, बट देन दीज आर ऑल टूल्स. उसमें से एक है जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर BI. अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर
website, this tool is comparatively like in multiple aspect, it is most recommended one. Okay. But then again, depending upon the आपका use case, you can switch to other tools as well. So learning perspective के लिए, क्योंकि ये tool available है free में और बहुत आसान है समझना, तो you can use it. So now this is Power BI. Just remember Power BI, अब एक थोड़ा सा theory part है. Power BI में 3-4 चीजें होती हैं, ठीक है. Power BI एक complete set है. Power BI it is not a single tool. Power BI में 3 component होते हैं, 3. तो आपके पास एक Power BI डेस्कटॉप होता है जो कि आपके कंप्यूटर पे चलता है. आपके पास एक पावर बीआई सर्विसेज होती हैं जो कि पावर बीआई के क्लाउड पे चलती हैं. तो जिसको भी क्लाउड नहीं पता है, डोंट वरी, विल टॉक समथिंग अबाउट इट लेटर. तो ये याद रखो, कुछ इंटरनेट पे पड़ा रहता है वो सर्विस. और एक कुछ होता है ऑन प्रीमाइसेस सर्विस, जिसको कि आप एक खुद का एनवायरनमेंट बना सकते हो पावर बीआई में. सो जस्ट ये सब चीजें जस्ट थियरी हैं. विल सी मोर अबाउट इट. So I'll just repeat it. एक Power BI desktop हो गया, एक आपके पास Power BI की सर्विस होगी, and then the third part you have something called as Power BI on premises, जो कि आपका अपने कंप्यूटर में ही अगर आप पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहो तो. एंड अगेन इन सारे जो 3 पार्ट मैंने बड़े बड़े बताए, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स और भी हो सकते हैं, बट देन जस्ट ओवरव्यू के लिए द स्टार्टिंग पॉइंट यू गाइस कैन जस्ट रिमेंबर ऑल these 3 points. Okay, so if you just go on a Power BI and let's say Power BI के बारे में रीड करना शुरू करोगे. So Power BI की official website, as you know, so let's say start वगैरह will not go into that. I just want to show कि उनका जो documentation है, उनके documentation पे just hide this one. उनके documentation पे what is Power BI, ठीक है, bring the gap between वगैरह वगैरह को छोड़ दो. चलो ठीक है, मैं बाद में लेके आता हूँ इसके कंपोनेंट्स वाले कहाँ पे. ठीक है, तो मैं स्लाइड है मेरे पास, स्लाइड्स वगैरह मैं बाद में शेयर कर दूंगा. ठीक है. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. सब थियरी पार्ट है, जिस हिसाब काम करोगे ऑब्वियसली आपको अपने आप समझना आएगा. तो पावर बीआई, सो ऐसा ही कुछ एक टूल होता है पावर बीआई डेस्कटॉप. सो पावर बीआई डेस्कटॉप आई वांट यू गाइस टू इंस्टॉल. तो आप अभी के लिए से पावर बीआई डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर दो. सो यू कैन जस्ट सर्च फॉर पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड. आइदर यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, दैट इज फ्रॉम ब्राउजर. ओके, यहाँ से कर सकते हो. ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड कर लो. ठीक है, और एल्स यू कैन गो टू द ऐप स्टोर और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. ऐप स्टोर इज बाय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर है. सो यू कैन जस्ट फॉर सर्च फॉर पावर बीआई एंड यू गाइस कैन सर्च इट फ्रॉम हियर. एंड यहाँ पे आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप आ जाएगा. सो डाउनलोड दिस वन. इसको डाउनलोड मत करना, इसको डाउनलोड करना. ठीक है, क्लियर है? था कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है एंड you will get an option to install. और यहाँ पे install पे क्लिक करना है. मेरे पास launch है, आपके पास install का ऑप्शन आएगा. Just install it and you guys can download it. Clear है? Yes. सिंपल इंस्टॉलेशन है इसका. नेक्स्ट Just हाँ, next भी नहीं, शायद 1 या 2 बार ही है. Okay, so yes, straight forward है काफी. just download करो, एक सी फाइल आती है. ठीक है, बस डाउनलोड करके उसको बस रन कर देना and you will be good to go. ठीक है, मैं 1 सेकंड में पानी लेके आ. ठीक है. Okay. Bro, for Windows 7 also we get Power BI, right? For No. Windows 7. No. Sorry. If you want to know what is the requirement for any product, just go on the internet and search Power BI desktop system requirement बोलते हैं उसको, system requirements. So if you want to see, यहाँ पे आपका get Power BI desktop है, and from here so you can go to something called as कहाँ पे है system app, control F requirement. Requirement 32-bit MSI ARM requirement. ठीक है, so you will get the Windows 8.1. या फिर अगर आप सर्वर रन करो, जो कि आप रन नहीं कर रहे हो, so just आपके लिए Windows 8.1 चाहिए. .NET का वर्जन ये चाहिए.
इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर डोंट वरी, क्रोम चलेगा। ठीक है, मिनिमम जीबी मिनिमम रैम इतना चाहिए, ऑब्वियसली इतना सबके पास होगा ही होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। डिस्प्ले वगैरह सबके पास है, सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। जस्ट मेक श्योर आप अपना विंडोज अपग्रेड कर दो। विंडो 8 पे भी नहीं चलेगा ये। विंडो 8 का यार देखो, मैं बोलूँगा अपग्रेड करिए ना तो विंडोज 10 पे कर दो, सिंपल सा फंडा। ठीक है, मतलब मैंने विंडो 8 पे कभी चलाया नहीं है, इसलिए आई कैन नॉट कमिट कि चलेगा कि नहीं चलेगा, बट देन बाई डॉक्यूमेंट इट सेज कि यहाँ पे विंडोज 8 पे चलेगा ये। ठीक है, सो अगर किसी के पास इशू है तो प्लीज गेट इट अपग्रेडेड फ्रॉम समवेयर। ओके, नाउ कंसीडर द लिमिटेशन वगैरह, ठीक है, बाकी सब आप छोड़ दो, सिस्टम रिक्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, सो आई होप इट इज क्लियर। आई विल बी जस्ट बैक इन अ मिनट। Bro, Suraj, what are the questions you got today? Interview. What? Today you got interview, right? Yes. Yeah, you can speak. Yeah, bro. The questions, bro. I'm asking. Actually, it was more related to database, and actually, I'm working as a software developer. So, the technology I'm working on D2K. So they asked me on D2K also. Okay. So I am back. So I hope everybody got how to install it, right? Yes. Sure. So this is how it will look. So when you open the Power BI, sorry, this is my TIBCO spot file, जो कि मैंने दिखाया था ना उसमें. Let's say go to Power BI desktop. So this is how it will look. Power BI comparatively slow है यार, मुझे personally थोड़ा सा slow लगता है Power BI. Don't know how it. नहीं समझा क्या बोल रहे हो आप? बंद नहीं करना बोला, एक बार शुरू किया तो शुरू किया है, डेवलपर लोग वैसे करते हैं। नहीं ठीक है, so this is how this Power BI desktop looks like. ठीक है, basically obviously देखो, okay, before we start this I forgot something. Okay, so just notepad में I'll tell you something. देखो, चलो आप ही लोग मुझे बताओ, ठीक है, अगर आपको रिपोर्ट्स बनानी है, राइट, सो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा? Data. डेटा। अगर डेटा सही है कि नहीं, अगर मान लो डेटा में कुछ गड़बड़ हो तो क्या करोगे आप? Alteration करेंगे. अल्ट्रेशन करोगे, अल्ट्रेशन। और एक बार डेटा सेट हो गया तो उसके बाद फिर आप लोग Load करेंगे. हाँ ठीक है, डेटा लोड कर देंगे, डेटा लोड कर देंगे। उसके बाद वंस डेटा इज लोडेड, मेरे पास डेटा आ गया पावर बीआई में, देन मतलब डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन पे डेटा आ गया, फिर क्या करोगे आप उसका? उसके बाद क्या करोगे? वो रिपोर्ट फॉर्मेट में डिजाइन कर, रिपोर्ट डिजाइनिंग, ठीक है, डिजाइन करोगे, ठीक है, रिपोर्ट डिजाइन, रिपोर्ट डिजाइन। और फिर लास्ट में रिपोर्ट बनाने के बाद क्या करोगे? Presentation. चेक प्रेजेंट करोगे या फिर शेयर कर दोगे, मतलब सेव करके शेयर करोगे, तो सेव करके अपने पास भी रखोगे, शेयर करोगे, राइट? सो दैट इज सेम, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विल डू। सो इफ यू सी, जब भी आप पावर बीआई ओपन करते हो तो हमारे पास एक विंडो आया था जिसमें लिखा था ओपन डेटा। इफ यू जस्ट वांट आई कैन, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, बट देन आई विल जस्ट ओपन इट सो दैट आप देखो। कोई भी एप्लीकेशन बनते ही वैसे है कि हाँ भाई, जितने भी आप टूल पे काम करोगे जनरली आपको स्टार्टिंग में दिखाता है कि लाइक हाउ डू यू वांट टू लोड डेटा। सो किसी भी टूल पे जाओ, यू विल जस्ट गेट इट कि हाँ भाई डेटा लोड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इफ यू सी, इट will prompt me to either get data, right, get data, recent stores, recent files, other open जो भी है, ठीक है, and then building, ये सब tutorials यहाँ पे कुछ जो अगर आप चाहो तो you can just go through them, okay,
go through the tutorials. यहाँ पे tutorials वगैरह हैं. Get started with Power BI. तो ये सब websites के links हैं, ठीक है. So if you will come here, get started with the Power BI, and it will guide you, right? It will guide you क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है. So एक simple सा dashboard वगैरह है. How Power BI कैसे काम करता है. It connects to data, shaping करते हैं, data modeling करते हैं, फिर share करते हैं. Same thing that we already assumed, right? क्योंकि वो sensible था, तो obviously वैसा ही होगा. So we'll connect to data, change the data. So basically we'll do some data cleaning or data modeling. Okay, data cleaning और data modeling का difference क्या था? We'll talk about that, but then yeah. So and also we'll share this on Power BI services. Okay, so we can just go through this. एक बार read कर लोगे आज के lecture के बाद. I will suggest कि ना जो official links होती हैं उनको follow किया करो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि official link पे थोड़ा data ज़्यादा होता है, but then you can be sure कि हाँ पे आप जो पढ़ रहे हो वो सही है, plus what are the additional information that is not available on other pages, या फिर कुछ हमने lecture में miss कर दिया. Obviously मैं 100% चीज़ें नहीं cover कर सकता, तो जो important है I'll try to cover as much as possible. Okay, so obviously if you want to pull the data, you could have pulled it from there itself, or else what you can do is you can pull the data from the Excel, you can pull the data from SQL Server, you can create a blank table in the Power BI itself. Okay, or you can try some sample data from the Microsoft. Okay, and apart from that, what are the other options that you have for getting the data sources? So if you'll click on this, you'll get all the possible and all the possibilities that is available by default inside the Power BI. So you have Impala, you have Snowflakes, Vertica. These are all different tools. So Teradata, these are again different tools. So Postgres, MySQL, है ना? Oracle SQL Server database, Oracle database, IBM database, which now I hope ये सब नाम आपको धीरे धीरे familiar होने लगे, right? I know कि आप लोग ये सब पता नहीं है, but still ये नाम सुनने में आप ऐसा नहीं लेते ना कि एकदम कुछ नया सुन रहे हो, right? Yes. Okay. So Google BigQuery वगैरह, ठीक है. If you Hadoop वगैरह, Azure में बहुत सारे टाइप के डेटा स्टोरेज होते हैं. Azure is just an cloud service provided by Microsoft. So Azure वगैरह हो गया, ठीक है ना. अगेन अगर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो SharePoint, that is just आपका जो नॉर्मल ऑफिस है ऑन क्लाउड. SharePoint, let's say Salesforce का डेटा. Salesforce आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा. This is very common. GitHub वगैरह लिंक का डेटा लाना है. ओके, इंस्टा वगैरह का भी डेटा, ट्विटर वगैरह का भी डेटा आता है, ठीक है. ट्विलियो एक बहुत कॉमन वेबसाइट है, आप देखोगे तो ये सब एक्चुअली इन सब की खुद की वेबसाइट्स भी होंगे. सो इफ यू वांट टू सी कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कैसे है, तो जस्ट गो टू देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स एंड यू कैन चेक इट. स्पार्क काफ़ी फेमस है, ठीक है. ODBC, ऐसे ये सब चीज़ें भी आपको नहीं जरूरत, बट देन अगेन इफ यू वांट टू पुल डेटा फ्रॉम पाइथन स्क्रिप्ट, R स्क्रिप्ट, यू कैन डू दैट एज वेल. ओके, मतलब जैसे आपको API से डेटा पुल करना है एंड बाय डिफॉल्ट उसका वर्जन अवेलेबल नहीं, तो यू कैन क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट एंड देन पुल डेटा. बट ठीक है, ये सब हमेशा यूज़ नहीं पड़ता. जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ फील कि हाँ भाई कितने सारे डेटा सोर्स अवेलेबल है. वी टॉक्ड अबाउट हडूप, राइट? हडूप वगैरह है, इतने सारे टाइप के डेटाबेस अवेलेबल देख लो दुनिया में. और स्कूप वगैरह यूज कर सकते हैं, फ्लूम क्या? स्कूप वगैरह. सॉरी, तो स्कूप वगैरह जो हडूप का रहता है, हाँ वो सब यार मैंने हडूप पे हाइव वगैरह. हाँ, हडूप पे मैंने काम नहीं किया है, इसलिए आई एम नॉट श्योर कि वो सब काम होता है कि नहीं होता है. बट देन अगर हडूप पे डेटा कनेक्ट होता है तो देयर शुड बी सम वे कि आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो हडूप से रिलेटेड. ओके ओके ओके, मतलब मैंने खुद आज तक कभी हडूप पे काम नहीं किया, तो आई कैन नॉट कमिट यू ऑन दैट. अच्छा. तो टिपको डेटा वर्चुअलाइजेशन, इस पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम के डेटा पुल आउट कर सकते हो. सो माय पॉइंट इज, अगर आप देखो तो अगर अभी तक हम लोग सिर्फ एक डेटाबेस के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज MS SQL, या फिर 2-3 के बारे में नाम सुन रहे थे, दैट इज MS SQL, Oracle, ये सब. बट देन एक्चुअली इंडस्ट्री में कितने सारे टाइप के डेटाबेस अवेलेबल हो सकते हैं. सो दिस इज जस्ट एन फाइल. अभी यहाँ पे ऑल है, अगर आप चाहो तो सिर्फ फाइल टाइप के डेटाबेस कितने हैं वो चेक कर सकते हो. डेटाबेस टाइप के डेटाबेस है ऑब्वियसली बहुत सारे हैं. पावर प्लेटफॉर्म लाइक पावर BI के खुद की अगर आपको कुछ क्रिएट करने हैं, सो वो सब है. एज्योर के कितने सारे अवेलेबल हैं.
ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि आपका लिंक्डइन वगैरह हो गया, गिटहब वगैरह हो गया, यहाँ से डेटा कैसे पुल करना है. सो दिस बीटा मीन्स कि यार दिस इज इनटू राइट नाउ टेस्टिंग फेज. इट माइट बी दैट कि हाँ भाई ये आपको कल परमानेंट हो जाए या फिर कल को हट जाए. सो no guarantee on that. And apart from this, which are not into any category, these are like ODBC. अगर आपके पास जैसे इसमें if I'm not wrong, MongoDB दिख रहा है आपको? MongoDB नहीं ना? हाँ. जब MongoDB वगैरह के लिए create करोगे, so you will have to go with the ODBC connection. So इसका setup करना कुछ बहुत difficult नहीं होता. Once you start working, everything will be easy for you. But then just get the feel कि कितना टाइप होता है. Suppose जस्ट वन थिंग, हाँ. आई मीन यहाँ पे जैसा लिंक्डइन वगैरह भी ऑप्शन दिया है राइट हम्म. ये लिस्ट में, तो मींस व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी कैन पुल फॉर एनालिसिस पर्पस, और जैसा लिंक्डइन से क्या पुल कर सकते हैं इसमें? देखो आई एम नॉट श्योर बट द लिंक्डइन का ऐसा कुछ होता है कि वो ना ओवरऑल डेटा की लाइक जैसे कोई कैंपेन वगैरह रन हुआ तो उसका हम्म, रिस्पांस वगैरह कैसे है, कितने लोग उस पे लाइक्स शेयर्स वगैरह क्या है, वो सब डेटा होता है. सो ओके. maybe after completion of course maybe one of us like few of us can work on LinkedIn data and all those things. But then क्योंकि ये सब कंपनी में यूज नहीं होता तो एंड इतना फ्री टाइम भी नहीं कि बैठ के उतना एक्सप्लोर कर सके. जैसे डेटा पुलिंग कर सकते हैं, तो जैसे अभी आपने बोला क्या जैसे वो इंस्पेक्ट जैसे डेटा पुलिंग कर सकते हैं ना, जैसा लिंक्डइन है या फिर कोई प्रोजेक्ट का डेटाबेस है ना आपको, वो यस इंस्पेक्ट करके जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करके, वही बोल रहे लेट मी सी. एक मिनट लिंक्डइन पे ओपन करके देख लेते हैं. ठीक है, लिंक्डइन का डेटा कहाँ जाए, ऑल पे जाते हैं. लेट्स गो फॉर ऑनलाइन सर्विसेज पे लिंक्डइन का डेटा एल कहाँ पे दिख रहा है? लिंक्डइन सेल्स आई एम नॉट श्योर कनेक्टेड टू थर्ड पार्टी. लेट्स सी कैसा होता है. सर्च यूज फॉर लिंक्डइन सेल्स सर्विसेज कंटिन्यू. लेट्स सी क्या होता है. डेटा कॉन्ट्रैक्ट मुझे भी नहीं पता क्या है. स्टार्ट एंड सेल्स लेट्स से एक दिन पहले की डेट लेता हूँ. आज 19 है सो विल गो फॉर 18 एंड यहाँ पहले 18 है तो विल गो फॉर 19. जैसे क्या होता है, मैंने भी कभी कनेक्ट नहीं किया. आई एम जस्ट ट्राइंग दिस फॉर यू आर नॉट साइन इन लिंक्डइन में. लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर कुछ होता होगा. ओके नो आइडिया. मैं बाद में चेक करके बताता हूँ ये सब क्या होता है. डन. ये सब बहुत रेयरली यूज करोगे. जुलाई लिंक्डइन विल नो लॉन्गर सपोर्ट द इंटरनेट एक्सप्लोरर. ओके सो लॉगिन करना पड़ेगा, वो तो मैं भी नहीं करूंगा. बट स्टिल यू कैन और एल्स आप में से कोई एक ट्राई करके बता देना कैसा होता है. डन. जस्ट करते रहो समझते रहो क्या लग रहा है, डालते रहो, फिर एक पॉइंट पे आपको दिख जाएगा लाइक क्या डेटा आता है. ओके सो मोस्टली हम लोग इस कोर्स में मोस्टली हम लोग लाइक एसक्यूएल और लाइक एक्सेल से काम करेंगे. मोस्टली एक्सेल से काम करेंगे क्योंकि एसक्यूएल पे मे बी आप लोगों ने कुछ चेंजेस कर दी डेटाबेस में, तो कभी काम करे कभी ना करे. तो जस्ट मैं डेटा लाइक एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करता है, विल गो थ्रू दैट एंड देन विल मोस्टली वर्क विद एक्सेल डेटा. एंड जो भी आप एक्सेल डेटा से पुल करोगे दैट कैन ऑलवेज बी डन विद द अदर डेटा सोर्सेज एज वेल. ओके okay now going for the so ये आपका लाइक इंटरफेस होता है. सो इंटरफेस मतलब आप किसी भी टूल से कैसे इंटरेक्ट करते हो, तो उसके लिए जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसी को आप बोलते हो इंटरफेस. सो कितने लोगों ने पहले कभी पावर बीआई को देखा है? किसी ने पहले ओपन करके इंस्टॉल करके ट्राई किया है? आई हैव ट्राइड. दिस इज I also tried. सूरज एंड इमरान. शुभम एंड इमरान सॉरी. सो मैं भी. मैं भी कौन? करीम. अरे so guys मैं खाली मस्ती में ऐसा बोलता हूँ, सो प्लीज डोंट टेक कि मैं किसी की बोलने के स्टाइल को लाइक नेगेटिव वे में मत लेना. ठीक है समझते Okay, you can tell. so हाँ so basically क्या होता है, obviously first of all you will have option for data pulling, so you can pull the data from here or you can click on get data and then you can go for all the more options. It will come again on the same page. Okay so when you click on more it will again bring you on the same page. सॉरी कुछ बोला था? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है. हाँ वही मैंने म्यूट किया. ओके सो you will have these options here.
So once you start pulling data, so let's pull in data from somewhere. So हम लोग एक पहले SQL को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. So let me just confirm कि मेरे पास SSMS वाला डेटा कनेक्टेबल है कि नहीं. ठीक है. So मैं लाइक एक कॉन्सेप्ट होता है आर्किटेक्चर. So मैं ना वो थोड़ा सा 3-4 लेक्चर हो जाए ना. So just remind me कि मैंने आर्किटेक्चर कवर नहीं किया. So I'll cover आर्किटेक्चर later so that आपको ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे उस टाइम पे. Okay. So this is a server, right? So let's say server पे हमने कनेक्ट किया. So this is not server, this is just a client. तो हमने एक सर्वर कनेक्ट किया. So remember हमें डेटाबेस पे कनेक्ट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है, राइट? क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगती है? बैकग्राउंड नॉइज है, बैकग्राउंड नॉइज, Guys, आईपी पोर्ट और पासवर्ड वगैरह. guys, are you guys still getting background noise? No. Okay. Imran or maybe Shubham, was it? It is not for everyone. Yeah. So now is there still background noise? No. Okay. Yeah. Oops, my bad. Chalo. So yeah, so we need server name, port number, and database name. Yeah. Right. So let's say I have this, my application, my server is running. Just to confirm, I connected to a server, and then if I want to connect to a particular database from Power BI, so obviously we'll go for the SQL server. Okay, let's go for SQL server database, and we'll say connect, right? और कुछ option दिख रहा है यहाँ पे? नहीं. So we'll go for connect. Server name. So what we'll do is we'll get the server. So we just get a new connection, create a new connection. Server name we'll just copy from here and then just paste it. Database name, it is optional. Okay. So if I want to enter database name, I can enter it, right? I'll just connect. So यहाँ से कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं टेस्ट करना दिखा रहा हूँ कि लाइक कहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ. सो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास पावर BI है. सो वी हैव पावर BI. सो लेट्स से पावर BI एंड दो चीजें होती है, इंपोर्ट क्वेरी और डायरेक्ट क्वेरी. ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ. भाई स्पेलिंग रॉन्ग है तो इंपोर्ट नहीं होगा आई थिंक. ओह सॉरी, माय बैड. थैंक यू. ओके, सो पावर BI डेटाबेस है. एडवांस ऑप्शन में क्या होता है, देखो कनेक्शन टाइम आउट वगैरह क्या होता है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स. जब आप कभी भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हो, राइट? सो कैसा होता है कि एक तरह से आप एक लाइन ओपन करते हो. ये समझो कि आप आपको कुछ डेटा लेके आना है वहां से, तो एक ट्यूब के थ्रू लाने की कोशिश कर रहे हो. इमेजिन करो, ठीक है, सर्वर से एक ट्यूब आ रही है. प्रॉब्लम क्या होगा, आपने एक ट्यूब डाली सर्वर पे, किसी और ने एक और ट्यूब कनेक्ट कर दी, तीसरे बंदे ने एक और ट्यूब कनेक्ट कर दी, तो कैसा होगा कि बहुत सारे ट्यूब कनेक्ट हो जाएंगी, राइट? हेलो, Yes. ठीक है. तो डू यू थिंक कि ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स कनेक्ट करके छोड़ देना सही है? No. राइट. सो क्योंकि ऐसा नहीं करना होता, तो जनरली क्या करते हो, आप एक कनेक्शन क्रिएट करते हो और बाद में उसको क्लोज करते हो. ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया. अभी बात ये है कि देखो, आप एक ट्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब एक कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पाए. क्या बोल रहा हूँ मैं? आप नहीं कर पाए. अब क्या होगा कि आप लगे पड़े हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो. क्या ये सेंसिबल है कि आप दिन भर लगा करते ट्राई करते रह जाओ उसको? No. ठीक है. No. सो मतलब वी कैन से कि मेरे को एक 30 सेकंड तक ट्राई करना है, नहीं तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मुझे बता दो कि हाँ मैं नहीं हो पा रहा. ठीक है, ये दूसरा केस हो गया. अभी तीसरा केस समझो. मान लो मैंने एक ट्यूब बना दी, राइट? मेरा कनेक्शन क्रिएट हो गया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम ट्राइंग टू पुल सम डेटा थ्रू दैट पाइप या फिर थ्रू दैट कनेक्शन. ठीक है. सो सपोज मैंने एक क्वेरी भेजी, फॉर सम रीजन वो जो डेटा ला रहा था, आधे टाइम डेटा कहीं फंस गया बीच में, और मे बी पाइप कहीं से टूट गई या फिर कुछ भी हो गया, वो डेटा मेरे तक नहीं पहुंचा. सो इज इट वर्थी कि मैं दिन भर बैठ के वेट करूं डेटा का?
No. राइट? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो डेटा आ रहा है वो बहुत धीरे धीरे आ रहा हो और मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, अभी तक पूरा डेटा आया ही नहीं। आ भी रहा है लेकिन वो बहुत ज्यादा धीरे आ रहा है, राइट? इतना ये तीन चार इसके समझ में है? Yeah. पहला क्या है? Yes. फर्स्ट क्या है, आपने कनेक्शन, एक सक्सेसफुल कनेक्शन क्रिएट हुआ एंड देन वो पड़ा है। सेकंड क्या है, कनेक्शन क्रिएट ही नहीं हो रहा। थर्ड क्या है, कनेक्शन क्रिएट हुआ बट इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो देयर आर डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर दैट। फर्स्ट वाला जो होता है, वी हैव डिफाइन द कनेक्शन एंड देन वी विल मैन्युअली डिफाइन कि हाँ पे उसको ब्रेक कब करना है। सेकंड पॉइंट इज there is something called as connection timeout. Okay. Connection timeout means I'm trying to create a connection, but then if that connection is not created into that particular time frame, I want to close that operation. Like I don't want to keep on trying that. तभी आप देखो ना, कभी कभी आपके किसी एप्लीकेशन में होता है कि अगर कनेक्शन कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे होता है जनरली, आप व्हाट्सएप से कनेक्ट करने की कोशिश करो। व्हाट्सएप पे आप किसी को कॉल करते हो, ठीक है, एंड कभी आपका इंटरनेट ब्रेक हो गया, सो वो दिखाता है रिकनेक्टिंग रिकनेक्टिंग रिकनेक्ट। Reconnecting with that. हाँ, बट देन Yeah. आफ्टर सम टाइम इट विल कैंसिल द कॉल, it will Yeah. drop the call, right? So that reconnecting part is like your connection timeout. You are trying to make a connection, but then if it is not successful in this particular time period, then just drop the call. Okay, so that is connection timeout. Command timeout, I'm trying to my connection is created successfully, but then I'm like जो मैं डेटा पुल कर रहा था, वो डेटा अगर मेरा 2 मिनट में 3 मिनट में नहीं आता है, तो आई वांट टू क्लोज दैट कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये सब कब यूज होता है, जब आप कंपनी में होते हो। सो अगर आप डेटा पुल कर रहे हो, ठीक है, अब कंपनी में एक सेंट्रल डेटाबेस होता है, उस पर सब लोग क्वेरी करेंगे। सो अगर आप कुछ ऐसा डेटा पुल कर रहे हो जो 15 20 25 जीबी का डेटा है और आपने उसके लिए एक कनेक्शन क्रिएट करके ले लिया और एक कनेक्शन आपके नाम पे सेट हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, बाकी लोगों को एक कनेक्शन कम मिलेगा, तो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आ सकता है कि हाँ भाई, कनेक्शंस लोगों के पास कम पड़ जाए, राइट? क्लियर है ना? Yes. मैं फिर से बोलता हूँ, डेटाबेस कंपनीज में सिंगल डेटा, मतलब जनरली मान के चलो एक सिंगल सोर्स ऑफ डेटा है, तो वहां पे सब लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने एक कनेक्शन क्रिएट किया, सब लोग पहले ऐसा होता है कि सब लोग 3 सेकंड के लिए कनेक्ट कर रहे थे या फिर 1 मिनट के लिए कनेक्ट कर रहे थे, काम हुआ कनेक्शन क्लोज, कनेक्ट किया काम हुआ कनेक्शन क्लोज। लेकिन एक बंदा ऐसा आया जिसने एक कनेक्शन क्रिएट कर दिया और उससे वो बहुत सारा डेटा पुल कर रहा है या फिर धीरे धीरे पुल कर रहा है और उसका कनेक्शन आधा एक घंटा ओपन ही है। ऐसा करते करते 4-5 लोगों ने कनेक्शन ओपन कर दिया, अलाउ अब 1 घंटे के लिए 4-5 कनेक्शन, पांचों के पांचों कनेक्शन बिजी हो गए। अब अगर किसी छठे बंदे को कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी तो उसको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा कि इसमें से कोई एक कनेक्शन खत्म हो तो मैं अपना कनेक्शन क्रिएट करूँ, ठीक है। सो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जनरली कंपनीज इस ऑप्शन को यूज करती हैं, पर क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है तो विल नॉट गो विथ एनीथिंग हियर। ओके, दैट इज व्हाई इट इज ऑप्शनल। इफ यू वांट, आप बोलो कि 2 मिनट में क्वेरी को क्लोज करना है तो वो क्लोज कर देगा। अगर आप बोलो नहीं करना है तो इट विल कीप ऑन रनिंग अप टू द कमांड इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली। क्लियर है? आप समझ में आया क्या होता है? You are telling about this one. Important direct query क्या होता है? हम्म Option. Okay. कमांड टाइम Command. आउट, Okay. ठीक है। दिस आई टॉक अबाउट लेटर, ठीक है। I hope this is clear, right? And apart from this also, what is connection timeout and all? Okay, so SQL statement, obviously if you want, देखो एक तरीका क्या है, आप पूरा का पूरा टेबल इंपोर्ट करो, और else you can write a certain SQL statement for this database, तो वो सिर्फ उतना डेटा लेके आएगा, ठीक है। इसके बारे में मे बी इट टाइम परमिट्स, हम लोग बाद में बात करेंगे जब विल टॉक अबाउट एनहांसमेंट ऑफ क्वेरीज। बट देन जस्ट रिमेंबर कि अगर आपको पूरा का पूरा टेबल एज इट इज नहीं लेना है, लाइक आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल रन नहीं करना है, इफ यू वांट टू डू सम मोर कंडीशनिंग, वेयर एज क्लॉज, वेयर एज फिल्टरिंग, दैट इज ग्रुपिंग, ये सब करना है, सो यू कैन ट्राई इट हियर। ओके, इंक्लूड रिलेशनशिप कॉलम्स, मतलब क्या हुआ कि अगर आपके डेटा टेबल में, डेटा बेस में रिलेशनशिप डिफाइन है, तो डू यू वांट टू इंक्लूड दोस रिलेशनशिप एज वेल? अगर आंसर यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है। नेविगेट यूजिंग फुल एग्री वगैरह जाना तो एनएपीएल एसक्यूएल फेलियर सपोर्ट, ये सब जाना तो ये सब एडवांस हो गया, कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। लेट्स गो फॉर ओके। सो अभी हम लोग कुछ क्वेरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल कोई टाइम आउट वगैरह दे रहे हैं, वी आर जस्ट trying to connect, create a connection, so we will create
and now let's say what is import and direct query. देखो दो तरीका है ना, एक तरीका क्या है कि मैं आपने डेटा डेटाबेस से पुल किया और उसका एक कॉपी बना के अपने पास रख लिया, इतना क्लियर है? हेलो, Yes. okay, No, but bro. Bro, can you repeat once again? yes, sure, I'll repeat it for you, bro. okay, but then on serious note, देखो import करना मतलब क्या हुआ? Okay, first forget the technical part. Let's say दो तरीके हो सकते हैं डेटा लाने के. आपने you pulled the data from the database and you created a copy of the data and kept it with you. This is first approach. Got it? Okay. Okay. Now second approach is I'm pulling the data. Okay. And since I have data for now, I'll create the visualizations. Okay. And then when I close the report, configuration for those visualization will be there, but the data connection is, since my data connection is broken, my data will be lost. Is it clear? So next time when I open the report, Power BI will again go back to the database, get the data, and then create the visualizations again. Again, when I close the report, since my connection is broken, again the data will be lost and the only blank reports will be there. Again, when I open the report next time, it will again pull the data and then create the visualizations. Got it? So mean live thing. Not live, क्योंकि when you say live reporting, that is completely different concept. Just remember कि जब भी आप report open करोगे, it will be like जैसे आपने report open की, it will go back to database and get the latest data. Done. Got it. Got it? And import is like once you created the data, it will just save the data in your DXP. So if you want to refresh the data when you have imported it, you have to do it manually. Okay. Done. Maybe manually or some schedule refresh, but then it is again like storing a copy which you want to refresh as per your requirement, but then it will not be happening automatically when you open the report. Got it? Done. Got it. Got it. Okay. Everybody got it? Guys, everyone got it? Yeah. Okay. So similarly, this concept, so understand again, again I'm telling you, apart from just tool, understand the concepts. Like what I'm trying to say is कि किस तरीके से आप data एक particular tool में ला सकते हो. ठीक है, इफ यू स्विच टू अ डिफरेंट टूल, द कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम कि हाँ भाई डेटा मैं कैसे कैसे पुल कर सकता हूँ, या तो मैं पूरा डेटा लेके आ जाऊँ और उसका कॉपी बना के रख लूँ, या तो मैं डेटा हमेशा नया लेके आऊँ. ठीक है, या तो अगर मैं डेटा रख भी रहा हूँ तो मैं उसको बीच बीच में रिफ्रेश करता रहूँ ताकि डेटा थोड़ा बहुत चेंज होता रहे. राइट, सो ये सब तरीके हैं. एंड देन जस्ट दैट कि हाँ भाई उसका नाम क्या है, इट इज डिफरेंट. नाउ अगर आप चाहते हो कि डेटा लेके आओ तो पावर बीआई में उसको इंपोर्ट बोलते हैं. अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा नया डेटा लेके आओ तो पावर बीआई में उसको डायरेक्ट क्वेरी बोलते हैं. ठीक है, similarly if you go to a different tool, it will have a different name, but the concept remain the same. Got it? Yeah. Sure. So देखो मैं बताता हूँ, देखो इससे फायदा क्या होता है. अगर आप concept देखोगे ना, so how it will be useful. Suppose आपको एक नया एकदम नया प्रोडक्ट है आपके पास. ठीक है, एकदम नया प्रोडक्ट है. लेट्स से ये टिपको स्पॉटिफाई. ठीक है, completely different प्रोडक्ट, आपने इसको कभी छुआ भी नहीं, इसके बारे में कभी सुना नहीं. ठीक है, so let's say I'll just open up to a part जहाँ पे ये कनेक्ट हो गया. ठीक है, जहाँ पे ये कनेक्ट हो गया. सो अगेन सेम थिंग. देखो हमने पावर बीआई में कहाँ से स्टार्ट किया था? वी स्टार्ट फ्रॉम समथिंग ब्लैंक पॉइंट, राइट? सो ब्लैंक पॉइंट था तो हमारे पास क्या चाहिए था? हमें पहले क्या चाहिए था? अगर हमारे पास हमने ब्लैंक स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमें कनेक्ट करना. डेटा से कनेक्ट करना है. सो ऑब्वियसली नाउ यू कैन यूज दिस टूल एज वेल, राइट? क्या करना पड़ेगा इसमें? हमें कनेक्ट टू डेटाबेस. कनेक्ट टू डेटाबेस. वो डिफरेंट डेटाबेस हैं इसमें राइट, से जो अब हाँ उसमें कैसे था? कनेक्ट टू डेटाबेस और एल्स आई कैन गो फॉर लोकल फाइल्स, राइट? तो जो भी ऑप्शन है, नाउ यू कैन सी इवन इफ यू हैवंट वर्कड ऑन दिस टूल, you got some direction कि हाँ भाई कैसे काम करना है. So even if I connect on this particular database and let's say I go for SQL server, let's say Oracle, MySQL, Microsoft SQL server. ठीक है, if I click this one, so obviously connect करना है तो न्यू कनेक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा, right?
Yeah. चलो कनेक्शन पे क्रिएट किया, अगेन सेम थिंग, सिंस यू नो कि हाँ भाई अब आपको ये पता है, आपको ये नहीं पता है कि क्या क्या वैल्यू डालना है, आपको यही पता है, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ भाई कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे सर्वर लगता है, डेटाबेस लगता है, पोर्ट लगता है, कुछ कुछ लगता है. सो अगेन सर्वर नेम, सो यू विल गो फॉर द सर्वर नेम, है ना. सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, अभी नहीं है तो विल सी लेटर, और देन एंटर नेम चाहिए तो आप एंटर देना, नहीं तो फिर सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट में भी जब आप कनेक्ट करोगे तो आएगा. तो सर्वर का नाम डाल दिया, पोर्ट नहीं मांग रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोर्ट 1433 ले लेता है. ठीक है, हमें याद है, देखो कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट नया नहीं है यहाँ पे. ठीक है, याद है ना, हमें जब यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करते हैं, सो वी हैव टू ऑप्शंस, वेदर यू वांट टू गो फॉर द एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन और विंडोज ऑथेंटिकेशन. सो either you can go for Windows authentication or SQL Server authentication. Same? Anything new here? No. No, right? Sorry. Again, username password same concept. डेटाबेस का सर्वर दे दिया हमने, पोर्ट चलो नहीं मांग रहा तो ऑब्वियसली यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा. तो लेट्स से यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो ओके, लेट्स से कनेक्ट. क्या हो गया, नाउ establish server but the okay, maybe कुछ और इशू होगा. लेट्स से डोंट वरी, ट्रस्ट सर्वर कनेक्ट. ओके हो गया, ठीक है. एन्क्रिप्शन था इसलिए. सो नाउ यू सी आई हैव ऑल द डेटाबेस. सो क्योंकि अब आपको पता है, क्योंकि आप सर्वर के अंदर, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप विल बी डेटाबेस. सी मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको दूसरा टूल सिखा रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू से कि देखो आपने एक बार समझ लिया कि लाइक कैसा होता है, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड यूज अदर टूल. तो अगर आपने डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया, सो इफ यू से ओके ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियसली आपके पास डेटाबेस है, तो डेटाबेस में से कुछ सेलेक्ट करोगे, राइट, है ना. तो यहाँ पे आपने याद है डेटाबेस के अंदर स्कीमास थे, तो हमारे पास स्कीमास है. मे बी हमने कोई टेबल सेलेक्ट कर लिया, हमने उसको ऐड कर लिया, राइट. हमने कुछ कॉलम्स वगैरह है, ठीक है, जो भी हमने कर लिया, ओके कर लिया, ठीक है. सो इफ यू से हियर आल्सो यू विल हैव द सेम ऑप्शंस. इंपोर्ट, सो कैन एनीबडी टेल मी यहाँ पे इंपोर्ट का मतलब क्या होगा? पूरा डेटा बस इंपोर्ट पूरा करना. डेटा इन मेमोरी एक्सेस, मतलब क्या, डेटा आप लेके आओगे, आपकी मेमोरी में स्टोर कर लोगे, राइट. Yeah. ऑन डिमांड, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड. एक्सटर्नल, आप हमेशा एक्सटर्नल रखना चाहते हो. सो पावर बीआई में देखो टूल टूल चेंज हो गया, बट देन द कॉन्सेप्ट रिमेन द सेम, कि डेटा लोड कैसा कर सकते हो, डेटा आप इंपोर्ट करना चाहते हो, डेटा एक्सटर्नल रखना चाहते हो, राइट. जो है सेम थिंग यहाँ पे भी, राइट. Yeah. So now since you know Power BI, how much time do you think it will take to learn the new tool? I guess approximately 1 month on your own, right? क्योंकि सब कुछ आप समझ के कर रहे हो. Okay, so I hope Yeah. you guys got the point, right? कि कैसे समझना है चीजों को. That is why I showed you two tools. Just close this one. But then the concept remains the same. Just UI change हो जाता है, कहाँ पे क्या available है वो change होता है. But then again, at the end of the day, आपको डेटा ही पुल करना है, कैसे पुल करना है वही सब बताते हो आप. So let's say okay, and we'll move further. So once you have provided details, the next option will be obviously you will have to select the table, right. हमने database Power BI का दिया था, so Power BI में we have these tables. So if you want to import some table, let's say I want to import sales data and maybe product data table. Okay, so we have one more option, that do you want to import the related table as well. So for example, you remember we have concept of primary key and foreign key. So for this, अगर इस टेबल में फॉरेन कीज वगैरह हैं, तो उन फॉरेन की पे कौन कौन से प्राइमरी की, कौन कौन से टेबल के प्राइमरी की रिलेटेड थे. तो फॉर एग्जांपल इवन इफ आई सेलेक्ट सेल्स वाला, तो सेल्स टेबल और मे बी सेल्स ऑर्डर आइटम, तो सेल्स, यू रिमेंबर सेल्स ऑर्डर आइटम में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज प्रोडक्ट आईडी एज वेल. So Yes. if I select related table, you will see product table also got selected and sales order also got selected. क्यों? क्योंकि sales item के अंदर we had defined कि these are my secondary columns. So since because we had defined कि this is secondary or foreign key, this will have some primary column in different table, and those tables will automatically be included if you click on the related table. So now you are like इतना clear हुआ? Yes, Asha. Okay. So now I hope you guys are able to go back
you guys are able to go back and relate the things that we have talked about. What is primary key, foreign key, how that is actually working in the back end, and how when on a single click that those things are like why these tables are selected on their own and why not other tables, because बाकी सब tables का इन इसके साथ और रिलेशन हो सकता है, but then इस table के साथ direct relation नहीं था, and that is why only these two tables were selected. Okay, so now you guys are able to see the bigger picture, right? हमने जो भी अभी तक सीखा है कैसे काम कर रहा हूँ. ओके, या फिर ज्यादा बड़ी पिक्चर हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, दोनों में से क्या ऑप्शन है? लाइक सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा है या फिर सिर्फ बहुत सारा ब्लंडर हो रहा It will clear step by step. और भी आएगा क्लियर है. है? ओके, तो क्या क्लियर नहीं है? हमने सीखा ही क्या है? एसक्यूएल और पावर तो सीखा है. एसक्यूएल का थोड़ा बहुत है, मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में. चलो ओके, ठीक है, कोई नहीं कोई. But then my point is कि I hope everybody is like ये बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से नहीं जा रहा है and you are still able to like obviously first time है तो थोड़ा बहुत सर के ऊपर से जाएगा, like समझना मुश्किल होगा या फिर याद रखना मुश्किल होगा, but then at least इस particular point पे you are getting it more than 90% of it, right? So I'm assuming that अगर उससे कम है तो please stop me and ask me to repeat. So देखो हमने क्या बात किया था, as you guys said, right, we have to bring the data, right? So let's say we'll bring the data. So once you have done that, what was the next step? Alteration, or in more exact term, let's say we want to do transformation, right? Guys, Yes. okay. So if you see, do I have an option to transform here? No. थोड़ा सा और देखो. भाई नीचे है, देखो नीचे Yes, लोड के yes. बाद So ट्रांसफर. Yeah. so obviously if you don't know the tool as well, still if you have something at the back of your mind कि मुझे ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन कहीं तो होना चाहिए, क्योंकि that makes sense, right? क्योंकि मैं डेटा एज इट इज यूज करूँ या नहीं करूँ वो मेरी मर्जी है, बट देयर शुड बी एन ऑप्शन. सो वो ऑप्शन आप ढूंढने की कोशिश करो तो नाउ यू विल गेट द ऑप्शन कि हाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा, एंड इफ यू डोंट वांट दैट ट्रांसफॉर्म डेटा यू कैन डायरेक्टली लोड इट. ट्रांसफॉर्म और लोड में क्या फर्क होगा? What is the difference? अगर आपका डेटा एज इट इज आप लोड करना चाहते हो, ठीक है, Okay. तो यू कैन जस्ट सिंपली से लोड कर लो भाई, जैसा आया लोड कर दो. ट्रांसफॉर्म इज लाइक आप जो डेटा आया आप उसको मे बी चेक करना चाहते हो या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हो या फिर मे बी एज सिंपल एज डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो. सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर. Okay. ओके, सो लेट्स गेट इनटू दिस एंड लेट्स जस्ट क्लिक. हमने डेटा टाइप के बारे में बात किया था लाइक एसक्यूएल में. Yes. Okay, so just transform data type. So when you open the transform window, so you see हमारे पास एक नया विंडो ओपन हो गया. Just to show you, छोटा गया था उसमें, ठीक है. Yeah, it's opening. ये अलग विंडो है ना, ये अलग विंडो है. Earlier it was expanded. So if you see, this was Power BI desktop and this is Power Query. So all the queries that you do for data loading is handled by Power Query. तो जो पावर क्वेरी आप सुनते हो, इट इज नॉट अ वेरी कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इट इज जस्ट दैट जो भी आप क्वेरी वगैरह करते हो, अगर आप एसक्यूएल में कमांड्स यूज कर रहे थे तो यहाँ पे आप पावर क्वेरी के थ्रू करोगे. ओके, सो अभी ये देखो क्या, ओके चलो इतना हो गया, ठीक है. एक्चुअली ये जो ऑप्शन आ रहा है ये इसलिए है क्योंकि मैंने पहले डेटा पुल किया था, बहुत पहले पुल किया था, दैट इज व्हाई इट इज लाइक दिस. बट इफ आई जस्ट वांट टू रिफ्रेश यू विल क्रिएट अ न्यू कनेक्शन. ओके, सो नाउ इट इज रिफ्रेश डेटा. बट देन माय पॉइंट इज आपने वो तीनों टेबल लोड कर दिए, राइट? सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गाइस कैन डू, we'll see later, but then I hope everybody is able to come up to this point on their own. So once you have done that, we can do some transformation ABC here. But then after that, if you want to, once you are done with the transformation, you can simply say close and apply. So those transformation will be applied and you will be loading. So now you see all the data is loading, and once this is done, the data will be loaded inside your Power BI desktop. Okay, is that clear? So you can see now. So once the data is loaded, कहाँ पे मिलेगा आपको डेटा टेबल्स? ये रहा आपके राइट में सारे टेबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है.
ये सही स्पॉट नहीं है, बट देन तो बेसिकली यहाँ पे आपके सारे कॉलम्स अवेलेबल होंगे टू बी मोर एक्यूरेट, ठीक है। और उन्हीं कॉलम्स को पावर बीआई के टर्म्स में हम लोग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर, ये टेबल नेम, उसके अंदर आईडी नेम। इफ यू वांट टू सी ऑल द टेबल्स, this is right now you are in report view. You can go to the data view, and similarly you have something called as model view. So data view के अंदर आपको सारे tables का पूरा data दिखता है, ठीक है। अगर आप इस table पे क्लिक करोगे, so you will see the complete data for this table. आप इस पे क्लिक करोगे, so you will get the complete data for this table. And there is something called as model. So model will cover in next lecture, but just remember, यहाँ पे भी आपको कुछ टेबल्स दिखते हैं, बट कुछ अलग तरीके से दिखते हैं। वो सब कैसे ज्वाइन हुए हैं वो सब हम बाद में देखेंगे, बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडल व्यू एज वेल, जहाँ पे आप मॉडल डिफाइन करोगे। सो दिस टू पार्ट आई गेस क्लियर है। ये वाला पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ टेबल का डेटा। अगर आपको पूरा रॉ डेटा देखना है कि क्या है टेबल में, तो यू कैन कम बैक टू दिस। अगर अगर आपको विजुअलाइजेशन क्रिएट करने हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कैनवास, एंड दिस कैनवास पे Bro, your voice is not rich. गाइस, कैन यू गाइस हियर? Yes, yes. Yes. बाकी लोग कुछ इशू आ रहा है क्या? लाइक वॉइस क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही है कुछ? No, no. बीच No, में nothing like that. stuck हो रहा है आपका। Sashank, it is No, no. yes, Sashank, it is happening only for you, I guess. I think some connectivity problem. Yeah, because your voice is also breaking for me, and I think for rest of others as well, right? Sashank Yeah, voice it's is absolutely fine. Yeah. no, Sashank voice is breaking for others as well, right? Or only for me? Yes, correct. No, bro, I'm No, not. no, This his stuck. Your voice voice is breaking. stucking actually. My Now voice. it's correct. See, this is the type of that connection problem I was talking about. अगर आप एक कनेक्शन ले रहे हो, वहां से डेटा पुल करो, so there might be a problem, there might be issue कि वो डेटा सही फॉर्मेट में ना आए, ये तो सही तरीके से ना आए। So might be you will have to close the connection and recreate it. Live example. Live example. Okay. So Shashank, can you hear me now properly? Yeah, now it's clear, bro. Oh, okay, no worries. So yeah, so I was telling that did you got me up to this point where I was telling what this particular view means? Yes, but thing is, मुझे बीच में डाउट किया कि पावर क्वेरी कहाँ से आया? I'm confused actually. Power query कहाँ से आया? Good question. I'll do it again. No worries. चलो, I'll do that again. Okay, no worries. Okay, okay. So yeah, once this is done, so you have all these tables and all these relations here. So this is one way that we use to bring in data. So यहाँ पे data आने के बाद you will have the visualizations here, you will have the filters here. Filters के बारे में बाद में करेंगे, but then you can create any visual here. Just click on that visual, click drag those field here. ठीक है, कैसे drag करना है, सबका क्या मतलब होता है, we'll see later. Just then I'm saying कि क्या क्या चीजें available है, ठीक है। Apart from that, obviously you have some home icon जहाँ पे कुछ basic functionalities available है आपके पास. We'll talk more about this in the next lecture. Okay, and you can have multiple pages here. Okay, and tabs वगैरह में बहुत कुछ है, तो I hope this complete interface clear. On the top you have ribbon to be technically, like अब technically बताता हूँ. On the top you have ribbon. Here you have something called as natural natural query NQL. Okay, मतलब आप कुछ टाइप करोगे तो उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट आएगा. Here you have different view modes. Here you have all the panes, filter pane, visualization pane, field pane, ठीक है. And at the bottom you have different pages and all those things. So if you select and at the bottom you have something called a status bar. So if you select some data, if you select some data, so क्या हो गया? Why not able to select? Okay, ठीक है, छोड़ो, बाद में देखेंगे. So this is what you have when you open the report. And suppose again, if you want to get the data from the Excel file, just click on the Excel, and let's say I want to bring in the sales data. I'll just open it. Again, if you remember, मैंने क्या बोला, जो भी data आता है that comes through Power Query. So again, you will be directed to the Power Query page. It will take some time, but it will open. Yeah.
So again, you will be redirected to Power Query page, and so now you got it right, Shashank. ये Power Query कहाँ से आया? Shashank. Yes, bro. Yes, bro. Okay, so when you are trying to load the data, all the data will be loaded through Power Query itself. Okay, irrespective of from where you are loading, but then when it comes to Power BI desktop, it will come through Power BI query itself. Okay. So, So we are supposed to make any changes in this Power Query also, like any kind of queries in this. you will not be writing queries, you will be transforming your data as per your requirement. Okay, so that we'll see in the next lecture, but then just get an idea ki how the data is coming. So you have something called as database, you have something called as desktop, and you have something called as Power Query that will be bringing data from data source to your desktop. Okay. So I hope this part is clear, right? कि अब database से या फिर किसी भी data source से आपके पास data reach कैसे हो रहा है? चलो ठीक है. Yes. So we'll like stop at this point today because we are about to end with the time. So I hope अभी तक हमने जितना देखा that is clear. So what we have seen, let me just quickly cover those points. So we started with something called as interview questions. Okay. So interview questions that is not required, but just what we saw through today. Interview questions. Then we went for some 100 rupees extra knowledge, right? Ashish, let me know that actually, are you going to provide some notes for this? Actually, these are the new concept for everyone. So we Okay. need a step-by-step notes. Actually. How note? Maybe see, I have some slides. Maybe I'll share that with you guys. Okay, actually, these are the new concepts for everyone. So we need some notes kind of things. So that will be easy for us to refer those and so that we can prepare well. Okay. Notes. Okay, I'll try to create some notes or maybe some slides I have shared. I'll share those slides, and then if you guys have any queries further, let me know, and then I'll create the notes. Okay. Yeah, sure. So we talked about NoSQL. Okay, we talked about SQL versus database. Let's say database technologies. Okay, DB Tech. And apart from that, we talked about Power BI, or let's say not just Power BI. We talked about tools like business analysis tools, right? And we talked about data science, machine learning, and AI, and we talked about concepts of pulling data. Okay, I hope everybody is with me on these all points, and everybody Yeah. got points, right? Yeah. Just share the today's session so that we can watch it again, so that all the concepts will be more clear. Sure. Okay. Bro, Ashish bro. Bro, don't mind if I'll ask questions like silly questions. Can you please tell me joins? No, bro, no. I'm so sorry, bro. उसके लिए आपको extra charge लगेगा. I'm so sorry. खाते में लिख देना. Just kidding यार. तो joins क्या होता है यार? देखो, joins is simply if you have two tables. Okay, so I hope I just covered that point. Okay, but still I'll take some minutes here. Okay, so if you remember, right, अगर हमारे पास two tables, right, for example, एक्सेल में लिया था शायद से वो. एक्सेल में भी लिया था, और जब मैं वो कर रहा था, क्या बोलते हैं, जब मैंने नॉर्मलाइजेशन वाला बताया था, याद है? सो तब बताया था, बट इट इज जस्ट दैट आपके पास, ओके, मैं उसमें फट रहा था, मैं एसएसएमएस में नहीं बता रहा था, ठीक है? सो लेट मी जस्ट जॉइन इट फट से. सर आपकी बैच का एक दिक्कत क्या है पता है? आपके बैच के बाद जस्ट तुरंत एक बैच है, तो मेरे को वहाँ पे फट से जाना पड़ता है, वरना मैं आप लोगों का बैच आधा ही घंटा खींच जाता कभी कभी. लाइक वो वाला बैच में कभी कभी 10 का 10:30 बज जाता है, बट इस बैच को मैं ऐसा नहीं कर सकता. अच्छा ब्रो, टाइमिंग चेंज कर दो ना, 8 से 10. नहीं, एक और बैच है 8 से 10. No, so you can change the timing actually. Most of the Saturdays I have office actually. So Okay. today it's a rush actually. I have to rush. Okay. Sure. Yeah. So if you change the timing, that will be very good for everyone. Okay. तो एक काम करते हैं, क्या नाम है आपका? Suraj. नहीं सूरज नहीं,
जो जिसने डाउट पूछा था क्वेरी वाला, Shashank. शशांक, maybe can we cover it tomorrow? Okay. It is about that. And timing का तुरंत नहीं होता, maybe जब पहला वाला बैच खत्म हो जाएगा तो I'll switch this batch to that timing and then something like that can happen. Maybe एक Okay, week okay, और nice. जाएगा ऐसा, ठीक? चलेगा. Ashish, I have some doubts. So when you will be free so that I can connect to you. Either today after 11 or maybe morning around Yeah. 10 or 9. 9. No issue. Actually, I just 10-15 minutes of just nothing, not more than that. तो Because फिर I है ना have, ऐसा भी कर सकते हैं, उसके जो डाउट्स है वो अगर सबके लिए यूजफुल है तो कल 6 to 8 अगर सेशन है कल तो हम 5:30 मिलते हैं, ऐसा कर सकते हैं अगर. नहीं. Actually, those doubts are related to my profile actually. अच्छा, ओके, देन फाइन. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ Yeah. 10 बजे लेक्चर खत्म होगा मेरा, 8 से 10 वाला. तो उसके बाद हाँ. मैं थोड़ा सा खा पी हाँ. के फिर हम लोग 11 तक कनेक्ट करते हैं. हाँ. Yeah, you can ping me so that you can ping on a group so that I can personally call you. Sure. आशीष भाई, Yeah, thank you so much. बोलो. भाई कल एक थोड़ी देर के लिए आओ ना, वो एसक्यूएल का थोड़ा बहुत डाउट्स है, क्लियर कर लेंगे. एक मिनट रुको, मैं थोड़ा पॉज कर दूं रिकॉर्डिंग.